اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں شام میں وزیر صلاح الدین اپنے ساتھیوں اور عمر ملا کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں۔ بورو کہتا ہے گمشتگن کا حکم نہیں مانتے بھائی، شام ہمارا شہر ہے، اگر ضرورت پڑی تو لڑتے ہیں مرتے ہیں۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں اجلاس سے نکلنے والا فیصلہ واضح ہے۔ بورو پریشان ہوتے ہوئے کہتا ہے گوگ بورو تم یہ کیسے کر سکتے ہو؟ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں مجھے تجسس ہے کہ کیا اسے اندازہ بھی ہے یا نہیں، ہم نہیں جانتے کہ ہم کس طرح کے منصوبے میں ہیں۔ گمشتگن کون سی چالیں چل رہا ہے یہ واضح نہیں ہے۔ کراکوش کہتا ہے ہم برسوں قید میں رہے، کون جانتا ہے کہ انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، بظاہر گوگ بورو اپنی عقل کھو چکا ہے۔ کراتگن کہتا ہے چونکہ ہمارے پاس وقت موجود ہے ہم اس لانتی کے کھیل کو برباد کرتے ہیں۔ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بدماش نے میرے بانجے کو اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں یہ جگہ قائرہ جیسی بن جائے میں یہ نہیں چاہتا، ہمیں فوراً سے پہلے قائرہ پہنچ کر جو کرنا ہے اس کے بارے میں تسلی سے سوچنا چاہیے، جو ہمارا ہے ہم یقیناً اسے حاصل کر لیں گے۔ اس لیے میں اسفہانی اور وزیر عماد وہاں پہ آتے ہیں۔ اسفہانی کہتے ہیں گمشتگن نے نائب ہونے کے ناطے دوسرا حکم بھی دے دیا ہے، عماد میں اور عمر ملا محل سے دور کر دیے گئے ہیں۔ یہ سنتے ساتھی عمر ملا مسکرا دیتے ہیں اور وزیر صلاح الدین کہتے ہیں ایسا ہوگا واضح تھا۔ اسفہانی کہتے ہیں گمشتگن سلطان اسماعیل کے پیچھے چھپ کر ماضی سمیت ہر چیز کو برباد کرنے کے عزم کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ وزیر صلاح الدین عمر ملا سے کہتے ہیں عماد اور اسفہانی کے ساتھ قائرہ مصر میں متحد ہوتے ہیں، تو عمر ملا کہتے ہیں لیکن کسی کا شام میں رہ کر اس شہر کی حفاظت کرنا ضروری ہے، یہ ذمہ داری ہم پہ پڑتی ہے۔ وزیر عماد کہتے ہیں عمر ملا آپ حق بجانب ہیں، جب آپ شام کے دروازے پر پہنچیں گے تو ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ یہ سن کر وزیر صلاح الدین کہتے ہیں تو پھر سلامتی کے ساتھ رہیں، تم اپنی ذمہ داری اسی طرح جاری رکھو گے کراتگن، جو بھی کر کے گمشتگن کا اعتماد جیتو۔ کراتگن کہتا ہے تم بالکل بھی فکر مت کرو صلاح الدین، تمہاری آنکھیں یہاں کے لیے پریشان مت ہوں، میرا شہزادہ بانجا میرے سپرد ہے۔ اس کے ساتھ ہی وزیر صلاح الدین اٹھتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف گمشتگن کا ایماس اور گوگبورو کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور کہتا ہے تم نے سب کچھ سرے سے بدل دیا ہے گوگبورو، میں تمہارا مشکور ہوں۔ تو گوگبورو کہتا ہے میں نے یہ ایوبیوں کو راستہ نہ دینے کے لیے کیا ہے۔ پھر کائماس کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے ورنہ میرا ان جیسے غداروں کا ساتھ دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ یہ سن کر کائماس کہتا ہے میں تمہارا غصہ سمجھتا ہوں لیکن ہمیں ماضی کو اب پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ گوگبورو کہتا ہے اس طرح آسانی کے ساتھ میرے ہاتھوں سے نجات نہیں ہے، تمہارے فتنے کی وجہ سے میں نے اربیل عمارت اور اپنے خاندان کو کھو دیا، تم اپنے کیے کا حساب دو گے۔ یہ سن کر گمشتگن کہتا ہے میں تمہارے آپس کے حساب کتاب میں مداخلت نہیں کروں گا، لیکن ہم نے صلاح الدین کے خلاف ایک اتحاد بنایا ہے، اب اتحاد توڑنے کا نہیں مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ تو گوگبورو کہتا ہے فکر مت کرو، ہر چیز کی طرح انتقام کا بھی وقت ہے، میں نے قید خانے میں انتظار کرنے کا طریقہ سیکھا ہے، ابھی کے لیے میری واحد شرط اس اتحاد پر صلیبیوں کا سایہ نہ پڑنا ہے۔ یہ سن کر گمشتگن کہتا ہے یہاں ایسی ویسی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن میں کچھ کے ساتھ امن قائم کرنے کے لیے پرعزم ہوں۔ تو گوگبورو کہتا ہے نائب آپ ہیں، جو راستہ آپ کو ٹھیک لگتا ہے اس پہ چلیں، لیکن مت بھولنا کہ میری نظریں تم پہ ہیں، اگر ذاتی مفاد یا کسی وجہ سے تم ان کے ساتھ اس طرح تعاون کرتے ہو جس طرح سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے۔ یہ سن کر گمشتگن اس کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کیا تم نئی زندگی دینے والے محسن کو دھمکی دے رہے ہو؟ تو گوگبورو کہتا ہے جیسے سمجھنا ہے ویسے سمجھو، انسان کو اپنے سب سے قریبی لوگوں کی جانب سے غداری دیکھنے کے بعد کسی کو اے واللہ کہنے کا دل نہیں کرتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی گوگبورو چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ولیم اور بالن ایک تاریک زندان میں قید ہوتے ہیں۔ ولیم کہتا ہے ماریا نے ہر چیز کے بارے میں تفصیل سے سوچا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب ولیم کی انگوٹھی دکھاتے ہوئے ماریا نے کہا تھا یہ انگوٹھی لطیف کی لاش کے پاس سے ملی ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ انگوٹھی آپ سے منسوب ہے۔ تو ولیم نے کہا تھا سچ ہے کہ انگوٹھی مجھ سے منسوب ہے، لیکن وہاں اس کی موجودگی کچھ بھی ظاہر نہیں کرتی۔ ماریا نے کہا تھا صرف اتنی سی بات تھوڑی نہ ہے، حفاظت پہ مامور فوجیوں نے حکیم لطیف کے کمرے سے سب سے آخر میں نکلنے والے شخص آپ ہو، انہوں نے اس کے بارے میں گواہی بھی دی ہے، بالڈون بھی وہاں موجود تھا۔ اس خیال کے بعد بالن کہتا ہے حکیم لطیف میں اسے بچا نہیں سکا۔ یہ کہتے ساتھ وہ اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا حکیم لطیف میرے دوست تھے۔ تو ماریا نے کہا تھا اور تم نے ولیم کے ساتھ اتحاد کر کے اپنے دوست کو مار ڈالا ہاں؟ پھر لاڈگائے نے فارمولہ دکھاتے ہوئے کہا تھا مستقبل کے بادشاہ بالڈون کے لیے خصوصی دوا کا خفیہ فارمولہ۔ تو بالڈون نے کہا تھا تم نے مجھے مایوس کیا بالن، فوجیوں گرفتار کر لو اسے۔ اس خیال کے بعد بالن کہتا ہے وہ میرے پاس صلاح الدین کی امانت تھا، ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم ان صلاحوں کے پیچھے بیٹھ کر اپنی اس قسمت کے آگے سر جھکائیں گے جو ماریا نے ہمارے لیے طے کی ہے؟ تو ولیم کہتا ہے ہمیں شیطان کے شیطانی دماغ سے بچانے والی واحد چیز خدا بند کی رحمت ہے، ہم اس سے پناہ لیں گے۔ کچھ دیر کے بعد سبیلا وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے ماریا اس حد تک جائے گی میں نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ ولیم پوچھتا ہے محل کی صورتحال کیا ہے شہزادی؟ تو سبیلا کہتی ہے آپ کو قید خانے میں ڈالنے کے بعد اجرت میں بالڈون کی تخت پوشی کی تکلیف رکھی گئی ہے، مگر جو بھی ہو جائے بالڈون میرا بھائی ہے، میں اس سے بات کروں گی، وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے گا۔ ولیم کہتا ہے ہم آپ کی کوشش کی وجہ سے آپ کے مشکور ہیں، لیکن یہ جان لیں کہ اب آپ کے سامنے آپ کا بھائی بالڈون نہیں ہے، ماریا کی جانب سے جس کے ذہن پہ قبضہ کیا گیا ہے وہ بادشاہ بالڈون ہے۔ دوسری طرف شمسا دوا پیتے ہوئے زمرد سے کہتی ہے شکریہ زمرد، تمہاری دوا حقیقت میں مفید ہے۔ اس لیے وہاں لیلا آتی ہے، لیلا کے آتے ساتھ ہی زمرد چلی جاتی ہے۔ شمسا لیلا سے پوچھتی ہے یہ کیا شکل بنا رکھی ہے لیلا؟ تو لیلا کہتی ہے مجھے زمرد بالکل پسند نہیں ہے شمسا آپا، بلکہ معذرت سلطانہ، اس کی آنکھیں اور حرکات و سکنات مجھے یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ شمسا اسے پاس بٹھا کر اسے پیار کرتے ہوئے کہتی ہے کیا تم شمسا آپا سے حسد کرتی ہو؟ جو میں لیلا کہتی ہے جب بھی آپ سے ملنے آتی ہوں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے اور آپ کو بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑتی، اب آپ میرے ساتھ نہیں بلکہ اس کے ساتھ بات کریں گی کیا؟ جو میں شمسا کہتی ہے بالکل نہیں، تم میری واحد اور اکیلی لیلا ہو، لیکن زمرد بھی اچھی لڑکی ہے اور ہماری طرح یتیم بھی ہے، کیا تمہارے خیال میں ہمیں اس کی دیکھ بھال نہیں کرنی چاہیے؟ یہ سن کر لیلا کہتی ہے آپ حق بجانب ہیں، میں معذرت خواہ ہوں۔ شام میں عمر ملا پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسفہانی کہتے ہیں یہ کیسی تقدیر ہے اے میرے اللہ، اس سے پہلے کہ ہم اپنے سلطان کا سوگ بنا سکیں ہم ان کی جانب سے ہمارے لیے چھوڑی گئی عظیم ترین یادگار محل سے بھی دور کر دیے گئے۔ کراتگن کہتا ہے دوری سے کیا مراد ہے؟ کوئی دوری نہیں ہے۔ عمر ملا کہتے ہیں کراتگن ٹھیک کہہ رہا ہے، دوری نہیں ہے، میں آخری بار اس محل کی سیر کرنا چاہتا ہوں جس کے ہر کونے میں میرے سلطان کی مہک ہے اور ملک اسماعیل کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اسفہانی کہتے ہیں ہرگز نہیں، وہ گمشتگن کیا کر دی یہ واضح نہیں ہے عمر ملا، ویسے بھی اس کو ادب سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ وزیر عماد کہتے ہیں اب اگر وہ آپ کو کچھ کہتا ہے؟ کراتگن ان کی بات کرتے ہوئے کہتا ہے کیا کرے گا وہ؟ درویش چچا آپ اپنے راستے پہ جائیں، میں آپ کے پیچھے فوراً آ رہا ہوں، فکر مت کریں، بری آنکھوں کو اندھا کر دوں گا اور برے ہاتھوں کو توڑ دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ عمر ملا کے ساتھ آگے بڑھ جاتے
जाता है। कुछ के मरकजी कमरे में तमाम लोग जमा होते हैं। दरबान की आवाज के साथ ही सब घुटनों के बल बैठ जाते हैं और कुछ का नया बादशाह बाल्डोन वहाँ पे दाखिल होता है और तख्त के सामने पहुंचते साथ ही हाथ के इशारे से सबको खड़ा करता है। मारिया सबसे कहती है, कुछ के नए बादशाह बाल्डोन चाहरम अपनी हुक्मरानी में तमाम ईसाई दुनिया में ताकत और इत्तेहाद लाएं। अगले लम्हे पादरी बाल्डोन को तलवार पेश करता है मगर बाल्डोन उसे मजबूती से थाम नहीं पाता। ये देखकर मारिया कहती है, हमारे तमाम दुश्मन आपकी तलवार के सामने अपने खून में डूब जाएं। अगले लम्हे बाल्डोन तख्त पे बैठ जाता है। मारिया कहती है, कुछ के लिए खुलने वाला नया दौर बहुत सी फतूहात का पेश खेमा है। इस लम्हे सबीला वहाँ पे आती है और गुस्से का इजहार करते हुए कहती है, कोई भी फतह बेगुनाह लोगों पे लगाए गए इल्जामात के जरिए पेश खेमा नहीं बन सकती। मारिया कहती है, शहजादी सबीला आप कुछ के बादशाह के सामने हैं, बराए मेहरबानी अपने आदाब का ख्याल रखें। बाल्डोन कहता है, मैं शहजादी सबीला से किले में बात करना चाहता हूँ, सब लोग निकल जाएं। मारिया कहती है, इज्जत में आप याद रखिएगा ताकि आपको बादशाह कबूल किया जाए। आपको सबसे पहले महल में मुखालिफ आवाजों को खत्म करना होगा। ये कहते साथ ही मारिया भी बाकी सबके साथ चली जाती है। कायरा में वज़ीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं और काजी फाजिल से कहते हैं, तमाम अरकान को कौंसिल में बुलाएं। फिर कराकोश से कहते हैं, मुश्किल वक्त हमारे इंतजार में है और हमें तैयार रहना चाहिए। अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा जब दुश्मन हमारी दीवारों पे गोनों समेत चढ़ दौड़े। हम जो मंजनी के बनाएंगे वो ज्यादा मौसर और ज्यादा ताकतवर होनी चाहिए। बोरो ने उन औजारों की बहुत तारीफ की है जिनका आपने खाका बनाया था। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी जहानत और फनून की इमारत का मुजाहरा करें। तो कराकोश कहता है, अल्लाह ने जो इल्म हमें दिया है उसको अल्लाह की खातिर इस्तेमाल करना बहुत शर्फ की बात है सुल्तान। वज़ीर सलाहुद्दीन बोरो से कहते हैं, बोरो महल में कराकोश के लिए काम की जगह मुख्तस की जाए। एलिसा और माहिस को कराकोश के साथ रहने का पैगाम भेजो, वो इसे हर चीज ला कर दें जिसकी इसे जरूरत है। ये कहते साथ ही वज़ीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। उधर शमसा फातिमा खातून के साथ बैठी कुरान पाक की तिलावत कर रही होती है। इसलिए वज़ीर सलाहुद्दीन वहाँ पहुंचते हैं। फातिमा खातून कहती है, मेरी ताज़ियत कबूल करें बेटा, हमारे सुल्तान को अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। शाम का रास्ता तवील और उसका बोझ भारी है, थोड़ा आराम करें, मैं आपसे बाद में पूछूंगी कि हालात कैसे हैं। ये कहते साथ ही फातिमा खातून चली जाती है और शमसा वज़ीर सलाहुद्दीन से कहती है, आपके चेहरे पर परेशानी का साया है सलाहुद्दीन। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुम्हारी रोशनी हर साए को निकल जाती है। शमसा कहती है, सुल्तान के जाने के बाद में जो भी कह लूं आपके लिए तसल्ली बख्श नहीं होगा। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कोई अलहदगी बाकी नहीं है शमसा, हमारे सुल्तान अपने महबूब से जा मिले हैं और जब भी हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं हम रूह के सही मानों में एक साथ हैं। शमसा कहती है, आप उस खुद से जा मिलेंगे जिसका ख्वाब आप और सुल्तान ने बरसों पहले देखा था इंशाअल्लाह। मैं आपको ये ना बता सके सलाहुद्दीन, एक ख्वाब था आपसे मिलने से बहुत पहले, मैंने उस ख्वाब को बार बार देखा था। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, तुमने असल में बताया था लेकिन मुझे नहीं, तुमने उस गिरजाघर में राहिब के बेस में बेचे गए लाडजियोम को बताया था और इत्तेफाक से मैं भी वहीं मौजूद था। मैंने सुना था लेकिन वो गैर इरादी था। शमसा उस लम्हे को याद करते हुए कहती है, कैसे? मेरा मतलब है कि आप सब कुछ जानते हैं, क्या आपने सब कुछ सुन लिया था? जवाब में वज़ीर सलाहुद्दीन हाँ में सर हिलाते हैं। शमसा कहती है, तो आपको शुरू से ही मालूम था कि मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, हैरान कुन बात यह है कि मेरा भी यही ख्वाब था। शमसा कहती है, सलाहुद्दीन क्या ये मौजज़ा नहीं है? ये कहते साथ वो खांसना शुरू कर देती है तो वज़ीर सलाहुद्दीन पूछते हैं, शमसा क्या ठीक हो? ये कहते साथ वो उसे पानी डालकर देते हैं और बिठा देते हैं। शमसा पानी पीते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ। मैं कायरा में वज़ीर सलाहुद्दीन शमसा के साथ बैठे होते हैं। इसलिए में वहाँ पे खलील आता है और कहता है, मेरे सुल्तान बुरी खबर है, उन्होंने हकीम लतीफ को शहीद कर दिया। ये सुनते साथ ही वज़ीर सलाहुद्दीन और शमसा को जोरदार दचका लगता है। वज़ीर सलाहुद्दीन सख्ते में पूछते हैं, किसने किया है ये? अल्लाह उसके कातिल को गारत करे। कुछ में सबीला बाल्डोन से कहती है, याद करें बाल्डोन, मुझसे आपने वादा किया था जब आप तख्त पर बैठेंगे तो हालात कुछ भी हों आप इंसाफ पर कायम रहेंगे और इंसाफ से इनराफ नहीं करेंगे। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि जिस तख्त पर आप बैठे हैं उसका दामन ताकत के नशे और ना इंसाफी से आलूदा हो रहा है। बाल्डोन गुस्से से कहता है, तख्त मेरा है, मैंने ये हक दोबारा हासिल कर लिया है। कौंत बालेन और विलियम अपने जुर्म की सजा पाएंगे। सबीला कहती है, खुदा के लिए ये उनका जुर्म नहीं है, क्या आप नहीं देख पा रहे हैं कि ये मारिया की चाल है? बाल्डोन खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है, वो आप हैं जो नहीं देख पा रही हैं। आपके सामने कोई लाचार बीमार बच्चा नहीं है जो आसानी से मुतासर हो सके। मेरी बीमारी जिसे आपने मेरे तख्त पर बैठने की राह में रुकावट समझा खुदा की तरफ से इम्तिहान था और मैं इस इम्तिहान में कामयाब होऊंगा। शहजादी सबीला अब आप जा सकती हैं, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ लाडगाई मारिया से कहता है, शहजादी सबीला आसानी से अपने भाई पर अपना सुरसोख तर्क नहीं करेगी। मारिया कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जितनी ही कोशिशें करें। बाल्डोन अब बादशाह है। चात्योन कहता है, बादशाह अपनी मर्जी के मुताबिक काम करने के लिए आजाद होता है या नहीं? मारिया कहती है, बादशाह बाल्डोन को अब बालेन और विलियम को सजाए मौत देनी होगी। मुझे इस बात को यकीनी बनाना है। आपकी जिम्मेदारी ने बादशाह को फौजी मदद फराहम करना है। हर कोई अपना फर्ज अदा करेगा। क्या ऐसा नहीं है लाडगाई? ये सुनते साथ ही लाडगाई चात्योन के साथ चला जाता है। सबीला कमरे से निकलने के बाद आगे बढ़ी रही होती है कि मारिया उससे कहती है, ऐसा लगता है कि बादशाह बाल्डोन के साथ आपकी मुलाकात उस तरह नहीं हुई जैसी आप चाहती थी। सबीला कहती है, आपको वो मिल गया जो आप चाहती थी। अपनी जीत का मजा लें, लेकिन ये ना बोलेंगे बाल्डोन जल्द या बदेर हकाइक को देख लेगा। मारिया कहती है, मेरी सिर्फ इतनी तमन्ना है कि काश आप देख सकें कि विलियम और बालेन ने आपको धोखा दिया है। ये सुनते साथ ही सबीला गुस्से में चली जाती है। शाम में गुमिश्तगन कैमास से कहता है, मेरा ख्वाब पूरा हो गया कैमास, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का तख्त नशीन अमीर गुमिश्तगन है। तो कैमास कहता है, ये मत बोलें कि नूरुद्दीन जंगी को ये तख्त हकदाराना तौर पे मिला था और आपने इसे खरीदा है। गुमिश्तगन कहता है, तुम बहुत जल्दबाज हो कैमास। कैमास कहता है, अब आप साहिब इक़्तिदार हैं, खजाने की चाबी आपके हाथ में है। सुल्तान के लिए ये मुनासिब है कि वो अपने नायब से किए गए वादे की पासदारी करे। गुमिश्तगन कहता है, मैं तुमसे अपना वादा निभाऊंगा लेकिन खजाने की सूरत हाल। तो कैमास कहता है, मैं बानू से थक गया हूँ अमीर गुमिश्तगन, मैं चाहता हूँ कि आप वो सोना जल्द अज जल्द मौसल मुंतकिल कर दें जिसका आपने मुझसे मेरी हिमायत के लिए वादा किया था, वरना मैं बोरो को सब कुछ बता दूंगा। उस जाल के बारे में भी जो मैंने बोरो के लिए तरतीब दिया था और उसने युगियों के दुश्मन बनने के लिए क्या किया, मैं उसे हर चीज बता दूंगा, सुन लें हर एक चीज। गुमिश्तगन गुस्से से कहता है, कैमास जो चाहे करो, मैं तुमसे उस खजाने को नहीं छुपाऊंगा जो मुझसे पहले आने वालों ने मुझे दिया था। दूसरी तरफ उमर मल्ला ने शहजादे इस्माइल को उठाया होता है। हिजर उनसे कहती है, अच्छा वो आप तशरीफ ले आए उमर मल्ला, ये सारी रात बेचैन रहा, मुझे नहीं मालूम कि ये नजर बद से मुतासर हुआ है या नहीं, लेकिन मैं इसके लिए दुआ करती रही। उमर मल्ला कहते हैं, बेटी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, तुम्हें जब भी मौका मिले तो आराम कर लिया करो। फिर दुआ मांगते हुए कहते हैं, या
یا रब अपने फजल से इस यतीम को उम्मत का खिदमतगार बना दे और इसके दिल में जिहाद की वो मोहब्बत डाल दे जो इसके बाप के दिल में थी। अपने मैदानों का फातेह, हमारे दिलों की रोशनी और हमारी कौम के लिए इसे रहनुमा बना। आमीन आमीन आमीन। दुआ के बाद वो उसे हिजर को दे देते हैं। फिर उससे कहते हैं अच्छी तरह इसका ख्याल रखना। ये कहते साथ ही उमर मल्ला चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोना भरोड़ते हुए गुमश्तगन कैमास से कहता है तुमने मुझे जो हिमायत दी है उसकी वापसी ये है। कैमास पूछता है लेकिन हम बगैर तवज्जो मबजूल किए इसे यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं? गुमश्तगन कहता है मंसूबा तैयार है। यह सुनकर कैमास कहता है आप नकलो हमल के काम के लिए किसकी खिदमत हासिल करने के बारे में सोच रहे हैं? गुमश्तगन कहता है क्या अब भी ऐसा बोझ उठाने के लिए गुब्बरो जैसे काबिल एतमाद आदमी हैं? कैमास कहता है क्या तुमने उस पागल को मारने की कसम खाई थी? गुमश्तगन कहता है वो कभी भी हकीकत को नहीं जान सकेगा। इसलिए उमर मल्ला वहाँ पे आते हैं। उन्हें देखकर गुमश्तगन पूछता है मोहतरम उमर मल्ला आप महल में क्या कर रहे हैं? क्या आपको उस हुक्म की तरह नहीं थी जो मैंने अस्फहानी को दिया था? आपको किसने अंदर आने दिया? जवाबन उमर मल्ला कहते हैं ये करने वाले खुद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी हैं। वही हैं जिसने हमारे लिए बगैर दरवाजों के ये आलीशान महल बनाया था। मैं भी महल के लोगों को अलविदा कहना चाहता था। उस वक्त मैं आपको जाती तौर पे मुबारकबाद देना चाहता था। आपकी मुद्दत मुबारक हो। गुमश्तगन कहता है मेरे ख्याल में ये मुबारकबाद आपके दिए गए हुक्म के पेश नजर मुखलिसाना नहीं है। उमर मल्ला कहते हैं तुम्हारी नेकी मेरी नजर में सुल्तान इस्माइल की परवरिश है। मुझे उम्मीद है कि आप उसे जारी रखेंगे। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की मीरास पर उन जैसा नाइब होना चाहिए। गुमश्तगन कहता है हम बिल्कुल इसी के बारे में बात कर रहे थे। हमारा पहला वजीफा नेकी और खैरात की मोहब्बत में अपने मरहूम सुल्तान के काम को जारी रखना है। हम जब रास्ते में थे तो हमने सुना कि मुसलमान लोगों के साथ गैर मुनसिफाना सलूक किया जा रहा है। हम ये सोना जरूरतमंद मुसलमानों के गाँव में तकसीम करने के लिए भेजेंगे। उमर मल्ला कहते हैं बहुत अच्छा ख्याल है। अल्लाह इस अजीम मुमलिकत पे जवाल ना लाए जो मजलूमों का सहारा है। ये कहते साथ ही उमर मल्ला चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गुमश्तगन गुस्से से कहता है मैं शाम में इस आदमी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैमास पूछता है इस मंसूबे के बारे में कोई मसला तो नहीं होगा? गुमश्तगन कहता है फिक्र ना करो, अपने आदमियों को गुब्बरों को लाने का हुक्म दो और अला से आने वाले मुसलमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाए। मैं जरूरी हुक्म लिखूंगा। कायरा में वज़ीर सलाउद्दीन अपने साथियों से कहते हैं दुश्मन को देखें जिनसे हम एक सदी से लड़ते आ रहे हैं, उसे जाने और याद रखें। वो इतना घटिया है कि उसने हकीम लतीफ को मार डाला जिसे हमने उनकी देखभाल पर मामूर किया था। उन्हें अपने बादशाह की जान की कोई परवाह नहीं थी। अब उसने बादशाह को फौरन खत लिखो, उसे कहो कि मैं उससे रूबरू मिलना चाहता हूँ। क्या हुआ, कैसे हुआ और ये किसने किया, मुझे सब मालूम होना चाहिए फाजल। ये सुनते साथ ही काजी फाजल चले जाते हैं। बोरो कहता है भड़काने वाले मालूम है, कातिल या तो मलका है या चातलियन। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं या फिर दोनों। जब मैं बादशाह से बात करूंगा तो हकीकत सामने आ जाएगी। बोरो कहता है बच्चा भी छोटा है, क्या हम उसे जान सकेंगे? जवाब में वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं हर खुशबू बिल आखिर अपने मालिक की हकीकत को जाहिर करती है। बोरो दूसरी तरफ कराकोश मंजनी के बनाने में मसरूफ होता है और अपने साथियों को तेजी से काम करने की हिदायत देता है। इसलिए मैं लिसा अपने सिपाही के साथ वहाँ आता है और कहता है तुम्हें जो कुछ चाहिए बोलो, हम लाकर देंगे। तो कराकोश कहता है मेरी जरूरत की हर चीज यहाँ पे लिखी गई है। मैं सबसे पहले मजबूत लकड़ी चाहता हूँ, फिर मुझे मजबूत रस्सियाँ चाहिए, फिर हमें कीलों के लिए लोहे की जाली, सलाखों और फौलाद के जोड़ों और अंगूठियों की जरूरत होगी। और मजीद ये कि माइज उसकी बात करते हुए कहता है क्या तुम्हारी दरख्वास्तें कुछ ज्यादा नहीं है? जवाब में कराकोश कहता है अगर आप फराहम नहीं कर सकते तो बता दें। एलिसा एकदम से कहता है हम करेंगे लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। कराकोश कहता है अभी वक्त है, जल्दी करो। ये सुनते साथ ही वो दोनों चले जाते हैं। इसलिए ज़ुमर्द मशरूब लेकर वहाँ पे आती है। मशरूब लेते साथ ही कराकोश उसे देखने लग जाता है। शाम में कर्तगन हिजर के पास आता है और उसे काम करता हुआ देखकर कहता है हिजर खातून क्या कर रही हैं आप? क्या आप कपड़े धो रही हैं? रुको, गुमश्तगन को भी कुछ धोने दो। ऐशो इशरत के साथ नाइब बनना काफी नहीं है, उसे कपड़ों का थोड़ा ख्याल करने दो। हिजर मुस्कुराती है तो वो कहता है आप हंस नहीं है ना, हमेशा हंसते रहें, क्या वजह है? आप हमेशा उदास रहती हैं? तो हिजर खड़े होकर कहती है कुछ नहीं, बस मुझे इस बच्चे के लिए बहुत दुख होता है। हम इसे इसकी माँ के पास नहीं रख सकते क्योंकि वो बीमार है। हम इसे इसके बाबा के पास ले जाने के लिए रवाना हुए लेकिन ये रास्ते में ही यतीम हो गया। इसे विरासत में जंगी खानदान की मिरास मिली है लेकिन ये नहीं जानता। कर्तगन कहता है फिक्र मत करो, देखो इसके पास इसका एक चचा है, हमने उन मक्खियों को भगा दिया जो इसके माल और असबाब के गिर्द घूम रही थी। अब सब खत्म हो गया। इसलिए मेलबेज वहाँ पे आता है और कहता है चचा दरवेश ने आपको बुलाया है, ये जरूरी है। इधर गुमश्तगन गुब्बरो और कैमास से कहता है एला का कमांडार आसपास के गाँव में मुसलमानों पे हमले कर रहा है। तो गुब्बरो कहता है ये जलील इंसान की फितरत है, वो सिर्फ कमजोर और मजलूम पर इख्तियार रखता है, जबकि ताकतवर के सामने वो खामोश हो जाता है। जब मैं वहाँ से निकला तो मुझे वहीं पे उसका सर काट देना चाहिए था। गुमश्तगन कहता है जरूर इसका वक्त आएगा, हम सबसे पहले अपने दीनी भाइयों की मदद करेंगे। कैमास कहता है अमीर गुमश्तगन मुसलमानों को सोने की एक बड़ी मिकदार भेजना चाहते हैं। गुब्बरो पूछता है कैसे होगा? तो गुमश्तगन उसके पास आते हुए कहता है तुम जानते हो कि रास्ता खतरनाक है, मुझे तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं है, वहाँ के लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, क्या तुम्हें ये फरीजा कबूल है? तो गुब्बरो कहता है मैं इस तरह के फरीजे से कैसे इनकार कर सकता हूँ, मुझे कबूल है। कैमास कहता है देहाती सोने को लेने के लिए करीबी जंगी सराय में आपका इंतजार करेंगे। तो गुब्बरो कहता है जैसे ही मैं अपनी तैयारियां मुकम्मल करूंगा अल्लाह के हुक्म से रवाना हो जाऊंगा। ये कहते साथ वो चला जाता है। उसके जाने के बाद कैमास कहता है ऐसा लगता है कि ये हमारी तुक्कों से कहीं ज्यादा आसान होगा। दूसरी तरफ कर्तगन तेजी से उमर मल्ला के पास आता है तो उमर मल्ला उससे कहते हैं कायरा में फौरी तौर पर खबर भेजो कर्तगन, ये मलून लोग रियासत के खजाने को खाली कर रहे हैं। कर्तगन कहता है रुकें, पुरसकून हो जाएं और मुझे समझाएं कि कैसे। तो उमर मल्ला कहते हैं मैं जब महल में पहुंचा तो वो बातें कर रहे थे मुसलमानों के लिए बड़ी मिकदार में सोना भेजने के बारे में जिन पर कमांडार की तरफ से जुल्म हो रहा है, लेकिन ये झूठ है। अगर ऐसी कोई चीज होती तो हम सबसे पहले जानते, क्योंकि मैंने वहाँ बहुत से तुलबा भेजे हैं और सब मुझे इलाके के हालात के बारे में बाकायदगी से बताते रहते हैं। उन्होंने एक मौके पर गुमश्तगन से मदद मांगी थी लेकिन उसने उन्हें बुरी तरह से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर कर्तगन कहता है लानत हो उस गुमश्तगन पे, आप फिक्र मत करें चचा, मैं सलाउद्दीन को फौरी तौर पर खबर भेजता हूँ। ये कहते साथ ही कर्तगन चला जाता है। कुछ में बाल्डोन मारिया से पूछता है क्या बादशाह बनने के लिए अपने प्यारों को तकलीफ देना जरूरी है? क्या उस नन्हे बादशाह ने भी ऐसा किया था? तो मारिया कहती है एक अच्छा बादशाह होने के लिए पहली शर्त यह है कि जो जरूरी हो वो किया जाए। आपने भी शहजादी सबीला के साथ बात करते हुए वो किया जो जरूरी था। इसलिए में मुलाजमा खत लेकर वहाँ पे आती है और कहती है बादशाह मोहतरम ये सलाउद्दीन यूबी की तरफ से है। मारिया खत खोलकर पढ़ती है और फिर बाल्डोन से कहती है सलाउद्दीन आपसे मिलना चाहता है। हकीम लतीफ के साथ जो कुछ हुआ
اس کے بارے میں تو بالڈون کہتا ہے میں ملوں گا۔ ماریا اسے کہتی ہے لیکن یہ ملاقات آپ کے لیے بری ہو سکتی ہے، اگر آپ چاہیں تو۔ بالڈون اس کی بات کاٹتے ہوئے کہتا ہے میں سلطان صلاح الدین سے مل کر میں سائرہ میلا سے کہتی ہے صلاح الدین اور بورو وہ دونوں خوش قسمت تھے کہ ایلا قلعے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ میلا کہتی ہے یہ صرف ان کی قسمت تھی، مجھے یقین نہیں ہے۔ سائرہ کہتی ہے کیا کہنا چاہتی ہو؟ تو میلا کہتی ہے بورو قلعے میں تمہارا قیدی تھا، وہاں پہ اسے مارنا تمہارے لیے بہت آسان تھا، لیکن تم نے تو۔ سائرہ کہتی ہے سلطان صلاح الدین ایلا میں آپ کے سامنے تھے، انہیں بھی وہاں مارنا مشکل نہیں تھا۔ میلا کہتی ہے انتقام سے زیادہ، حتیٰ کہ دنیا کے تمام احساسات سے زیادہ طاقتور ایک چیز ہے، یوں سمجھو کہ ہر چیز سے طاقتور وہ احساس ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے سائرہ؟ مجھے ڈر ہے کہ یہ احساس ہم سب کا خاتمہ کر دے گا۔ کچھ میں چاتیوں آگے بڑھتے ہوئے لڑگائی سے کہتا ہے آپ نے بچے بادشاہ کو اپنے آدمیوں کی وفاداری پیش کی، اب آگے کیا فریضہ ہے لڑگائی؟ اچھا میں بھول گیا تھا، ہمیں اس کے لیے ملکہ ماریا سے ملنا چاہیے ہے نا لڑگائی؟ لڑگائی کہتا ہے حد میں رہو چاتیون۔ تو چاتیون کہتا ہے مجھ پر غصہ نہ کرو، حد پار کرنے والی ملکہ ماریا ہے جس نے تمہیں غلام بنا لیا ہے۔ لڑگائی کہتا ہے ملکہ اپنے سوتیلے بیٹے کی ڈور کھینچنے میں مصروف رہے، لیکن جب وہ ڈور اس کے ہاتھوں کو تکلیف دینا شروع کرے گی تب اسے پتا چلے گا کہ یہ قسطنطنیہ نہیں ہے۔ چاتیون سے پوچھتا ہے تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ جواب میں لڑگائی کہتا ہے میرے ذہن میں اب صرف ایک ہی چیز ہے، شہزادی سبیلا کو تسلی دینا، کیونکہ حال ہی میں ہونے والی چیزوں نے اسے بہت تکلیف دی ہوگی۔ یہ سنتے ساتھ ہی چاتیون مسکرا دیتا ہے۔ کیرک میں سائرہ کہتی ہے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر شام سے تازہ ترین خبریں سننے کے بعد۔ میلا پوچھتی ہے کیا ہوا ہے؟ تو سائرہ کہتی ہے بورو کا دوست ایلا میں قید کیا جانے والا گوگبورو وہ شام گیا تخت کی وکالت کے لیے اپنی رائے کو گمشتگن کے حق میں دے کر اسے نائب بنانے میں مدد کی۔ یہ سن کر میلا کہتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گوگبورو کو قلعے سے نکالنے والا گمشتگن ہے۔ سائرہ کہتی ہے گمشتگن نے بڑی چال چل کے گوگبورو کو صلاح الدین کے خلاف کھڑا کر دیا، ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس آدمی کو یہ طاقت کہاں سے مل رہی ہے۔ میلا پوچھتی ہے پتہ چلا تو کیا کرو گی؟ جواباً سائرہ کہتی ہے میں اپنا نامکمل کام پورا کروں گی۔ قاہرہ میں وزیر صلاح الدین بورو سے پوچھتے ہیں تمہارے اور گوگبورو کے بیچ نفاق پیدا کرنے والا کون ہے، کیا پتہ چلا؟ جواب میں بورو کہتا ہے میں دن رات اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، لیکن گھوڑوں اور کتوں کے قدم آپس میں ایک ہو گئے ہیں بھائی۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں تم نے کبھی سوچا ہے کہ گوگبورو ایلا سے نکل کر کیسے دیوان پہنچا؟ ذرا سوچو فائدہ کس کا ہوا؟ بورو کہتا ہے آپ کہتے ہیں بھائی کہ یہ گمشتگن کا کام ہے؟ جواب میں وزیر صلاح الدین کہتے ہیں گوگبورو کے نکلنے کا سب سے زیادہ فائدہ گمشتگن کو ہوا ہے نا؟ بورو پوچھتا ہے پھر اس نے اتنی آسانی سے کیسے کر لیا؟ کیا آپ کے خیال میں گمشتگن سلیمیوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے؟ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں شاید کر رہا ہو، شاید گوگبورو کو وہ جعلی خط اس کے ہاتھ سے پہنچا ہو۔ یہ سن کر بورو کہتا ہے اگر ایسا ہے تو گمشتگن نے بہت پہلے سے اپنے منصوبے پر کام شروع کیا ہوگا۔ اس لیے میں قاضی فاضل وہاں پہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کاراتگن کی طرف سے خبر ہے گمشتگن نے مسلمان مظلوموں کی مدد کے بہانے خزانے سے بھاری مقدار میں سونا نکالا ہے اور منتقل کرنے کا فریضہ گوگبورو کو سونپ دیا۔ وزیر صلاح الدین غصے سے کہتے ہیں فوراً لوٹ مار شروع کر دی۔ ہاں بورو کہتا ہے گوگبورو جان بوجھ کر ایسی حرکت میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ وزیر صلاح الدین چلاتے ہوئے کہتے ہیں تخت اس نے گمشتگن کے حوالے کر دیا، اس سے زیادہ برا اور کیا کرے گا؟ ہر حال میں سلطان اسماعیل کے حق کا دفاع ہماری ذمہ داری ہے۔ بورو کہتا ہے بھائی اجازت دے میں حل کر دوں گا، شاید مجھے گوگبورو سے بھی بات کرنے کا موقع مل جائے، شاید ماضی پر چھائے ہوئے پردے کے بادل چھٹ جائیں۔ تو وزیر صلاح الدین کہتے ہیں محتاط رہو، گوگبورو پہلے کی طرح تمہارا دوست نہیں ہے۔ یہ سنتے ساتھ ہی بورو وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ کچھ کے زندان میں سبیلا بالین اور ولیم سے کہتی ہے سمجھے کہ بالڈون ماریا کے زہریلے خیالات کا قیدی بن چکا ہے۔ ولیم کہتا ہے بازنطینی سلطنت میدان جنگ میں نہیں بلکہ چاروں پیروں پر زہر کے ساتھ بنی ہے اور ماریا وہی کر رہی ہے جو وہ بخوبی جانتی ہے، وہ بالڈون کے خون میں اپنا زہر اتار رہی ہے۔ بالین کہتا ہے کچھ بھی ہو جائے صلاح الدین حکیم لطیف کے قاتلوں کا پیچھا کرے گا۔ سبیلا کہتی ہے سلطان صلاح الدین نے بالڈون کو اس سے ملنے کے لیے پیغام بھیجا ہے۔ ولیم کہتا ہے ماریا وہی جھوٹ بول کر ہمیں حکیم لطیف کے قاتلوں کے طور پر دکھائے گی۔ بالین کہتا ہے صلاح الدین یقین نہیں کرے گا، لیکن اسے سچ معلوم ہونا چاہیے، شاید وہ تب ہمارے لیے کچھ کر سکے، کم از کم اسے بتایا جائے کہ میں لطیف کے لیے افسردہ ہوں۔ سبیلا میں چاہتا ہوں کہ تم صلاح الدین کو پیغام بھیج کر ملاقات کی درخواست کرو، مارکوس تمہاری مدد کرے گا۔ شام میں کیماس گمشتگن سے کہتا ہے چونکہ ہم نے اپنے بیچ کا حساب برابر کیا تو اب باری آتی ہے کچھ اور امن کی، میں نے اپنے آدمی شام کی گلیوں میں بھیج دیے ہیں۔ گمشتگن کہتا ہے کیماس یہ کافی نہیں ہے، لوگوں کو نور الدین زنگی کے پیدا کردہ یقین سے دور کرنا آسان نہیں ہے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ وہ سالوں تک کیسے اپنی جان اور مال سے گئے ہیں، انہیں احساس ہونا چاہیے کہ اگر وہ کچھ کی محبت کو ترک کر دیں تو انہیں کیسے فائدہ ملے گا۔ رعایا کی نظر میں کچھ کو فتح کرنے کی سب سے اہم علامت۔ کیماس ہنستے ہوئے کہتا ہے سلطان نور الدین کا منبر جسے اس نے مسجد الاقصی میں رکھنے کے لیے بنایا تھا۔ گمشتگن کہتا ہے خواب یادگاروں کے ذریعے امر ہو جاتے ہیں کیماس، جب یادگاریں تباہ ہو جائیں تو خواب بھی مٹ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں۔ کیماس کہتا ہے لیکن لوگ اس سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ گمشتگن کہتا ہے ہر انسان کو درد ضرور ہوتا ہے کیماس، اب ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ کچھ کے چرچ میں سبیلا دعا مانگتے ہوئے کہتی ہے خداوند میرے بابا نے میرے لیے جو کچھ چھوڑا تھا وہ ختم ہو رہا ہے اور میں دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر پا رہی۔ تو وہاں والا لڑکائی کہتا ہے شاید آپ اور بھی کچھ کر سکتی ہیں شہزادی محترمہ۔ سبیلا اسے کہتی ہے مجھے سکون سے چھوڑ دو لڑکائی۔ تو لڑکائی کہتا ہے میں آپ کو یہاں ایک پیشکش کرنے آیا ہوں، کیا آپ کا تجسس نہیں ہے؟ سبیلا اسے کہتی ہے مجھے اس مقدس مقام پہ یہ کہتے ہوئے شرم آتی ہے، لیکن خدا گواہ رہے کہ صرف ایک احساس جو تم میرے اندر جگا رہے ہو وہ نفرت ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ جانے لگتی ہے تو لڑکائی کہتا ہے کون بالین کی زندگی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اگر میں کہوں کہ اس کی زندگی میری پیشکش پر آپ کے جواب پر منحصر ہے تو؟ سبیلا غصے سے کہتی ہے اپنا مقصد کھل کے بتاؤ۔ تو لڑکائی کہتا ہے میرا مقصد واضح ہے، مجھ سے شادی کریں شہزادی تاکہ بالین زندہ رہے۔ تو سبیلا کہتی ہے مطلب تم موقع کا فائدہ اٹھا کر اپنے ارادے ظاہر کرنے آ گئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ساتھ ہی سبیلا چلی جاتی ہے اور لڑکائی کہتا ہے خداوند میرا گواہ رہے تم میری ہو جاؤ گی شہزادی۔ قاہرہ میں وزیر صلاح الدین شمسہ خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور غمگین ہوتے ہوئے کہتے ہیں پہلے سلطان اب لطیف۔ شمسہ ان سے کہتی ہے بیروت میں کوئی وفات پا جاتا تو ایک شعر پڑھا جاتا تھا، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں پڑھ لوں؟ اجازت ملنے پر وہ گنگنانے لگ جاتی ہے ایسا کبھی نہ ہو کبھی نہ ہو کبھی نہ ہو، مگر وہ آگے گنگنانے سے پہلے ہی کھانسنے لگ جاتی ہے۔ وزیر صلاح الدین پوچھتے ہیں شمسہ تم ٹھیک تو ہو؟ میں طبیب کو بلاؤں گا، یہ دوسری بار ہے۔ مگر شمسہ نے روکتے ہوئے کہتی ہے میں ٹھیک ہوں، شاید یہ قاعدہ کی ہوا کا اثر ہے، میں ویسے بھی اپنی دعائیں لے رہی ہوں، فکر نہ کریں۔ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں نظر انداز نہ کرو، طبیب سے معائنہ کیا جانا چاہیے۔ کیرک میں چاتیون میلا سے کہتا ہے کون سی خواہش
ख्वाहिश के मुताबिक कुछ का तख्त अब बाल्डोन का है। यकीनन डोर मारिया के हाथ में है और बालन कदम बा कदम अपने अजाब की जानिब बढ़ रहा है। मैला कहती है सबीला अंदर से टूट गई होगी। चात्योन कहता है कुछ लोगों को कीमत चुकानी पड़ती है, मैं भी बगैर शराइत तुम्हारे करीब होने के लिए कीमत अदा करता हूँ। मैला उसे पीछे हटते हुए कहती है अब हमारा काम मारिया और लाड़गाई को सलाउद्दीन के खिलाफ मजीद भड़काना है, तभी बाल्डोन का तख्त पे विराजमान होना मानी खेज होगा। कायरा में तबीबा शमसा का मुआयना कर रही होती है और मुआयना करने के बाद कहती है जुकाम है शमसा सुल्ताना, आपको इतनी ठंड कहाँ लगी? मैं महल में मौजूद लोगों से दवाई तैयार करने को कहूंगी, बस 2-3 दिन आराम करें, इंशाल्लाह सेहतियाब हो जाएंगी। शमसा गले पे हाथ रखते हुए कहती है मेरी आवाज में ये घुटन दूर होगी ना? तो तबीबा कहती है वक्त के साथ साथ आपकी आवाज में भी बेहतरी आएगी। जमर्द कहती है मैं फौरन दवाई तैयार करवाती हूँ मेरी सुल्ताना। ये कहते साथ वो चली जाती है और लैला उसके पीछे जाती है। उधर गुकबरो सोना लेकर स्पाइयों के साथ सराय में पहुंचता है और स्पाई से कहता है होशियार रहें और एक लम्हे के लिए भी संदूक से दूर ना रहें। ये कहते साथ वो आगे बढ़ता है और बैठ जाता है। बाहिर बैबोरा बोरो के पास आता है और कहता है गुकबरो और उसके आदमी सराय में दाखिल हो गए हैं। तो बोरो कहता है बहुत खूब, हम कुछ लोग अंदर जाएंगे और तुम लोग पीछे रहना। मैं जब गुकबरो का ध्यान भटकाऊंगा तो तुम लोग संदूक लेकर निकल जाना। अगरचे गुकबरो मुझसे नफरत करता है लेकिन वो अब भी मेरा जिगरी दोस्त है, मैं उसकी या उसके बाथरूम की जानों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हम जानेंगे कि उसके लिए जाल किसने बिछाया और उसकी जहन साजी किसने की, हर एक को बेनकाब करेंगे। दूसरी तरफ बाल्डोन जिंदान में विलियम और बालिन के पास आता है और उन दोनों से कहता है आपने मुझे बहुत मायूस किया है। बालिन कहता है बादशाह सलामत आपके ख्यालात नहीं बदलेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बहुत गलत चीजों के बीच में हैं। विलियम कहता है ऐसा लगता है कि आपके कान जगह पर नहीं है और आपकी आंखें दोस्तों के गुलाम हैं, जबकि आपके बाबा। बाल्डोन गुस्से से कहता है मैं यहाँ इसके बारे में बात करने नहीं आया विलियम, मैं तुम्हारे दोस्त मिस्र के सुल्तान सलाउद्दीन से निजी मुलाकात करने के लिए जल्द ही महल से निकलूंगा। बालिन कहता है वो अपने हकीम के बारे में पूछना चाहता है जिसे उसने आपकी सेहत के लिए रखा था। बाल्डोन कहता है मैं उसे सच बताऊंगा। बालिन कहता है मारिया के अल्फाज के साथ आप यहाँ सलाउद्दीन के बारे में मालूमात लेने आए हैं, है ना? सलाउद्दीन अपनी आंखों से देखता है और अपने कानों से सुनता है और इसलिए उसे कोई धोखा नहीं दे सकता, उसे सिर्फ और सिर्फ हकायक बताने होंगे। सराय में बैबोरा गुकबरो के पास आता है, सिपाही उसे रोक लेता है तो बैबोरा गुकबरो से कहता है हम शहजादे गुमुश्तगिन का भेजा हुआ संदूक लेने आए हैं। गुकबरो खड़े होकर पूछता है क्या आपके पास हुक्मनामा है? यह सुनकर बैबोरा उसे हुक्मनामा दिखाता है, मगर जब गुकबरो हुक्मनामा खोलता है तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता। यह देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है यह एक जाल है। उसके सिपाही जैसे ही तलवारें बेनियाम करते हैं पीछे से आने वाले बोरो की तलवार उसके गले पे होती है। यह देखकर गुकबरो कहता है तुमने मेरे रास्ते में आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। बोरो कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। गुकबरो पूछता है बात करने को रह क्या गया है, चलो चलाओ तलवार। बोरो कहता है मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम सालों तक मेरे शाना बिशाना लड़ने वाली लड़ाइयों की खातिर मुझे सुनोगे। वो दोनों अपने सिपाहियों को पीछे कर देते हैं और गुकबरो कहता है ठीक है बैठ जाओ। वो दोनों आमने सामने बैठ शाम में गुमुश्तगिन एक खत लिखवा रहा होता है। ना खत्म होने वाली जंगों ने दोनों रियासतों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। सुल्तान साले इस्माइल के तख्त के नायब के तौर पर अब से मैं जंगी रियासत और कुछ के सुलेबी रियासत के बेच सुलह के हुसूल के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, शक ना रहे। यह खत मुनासिब ताहिफ के साथ नए बादशाह बाल्डोन तक पहुंचाया जाए। यह सुनते साथ सिपाही चला जाता है और कैमास कहता है फौजी माले गनीमत पर जीते हैं, वो इससे खुश नहीं होंगे। तो गुमुश्तगिन कहता है मैं उनका दिल जीतना जानता हूँ कैमास, जो माले गनीमत सुलेबी जमीनों से हासिल ना कर सके शायद वो जंगी जमीनों से हासिल कर लें। कैमास कहता है मैं नहीं जानता था कि आप सलाउद्दीन की जमीनों पर नजर रखे हुए हैं। यह सुनकर गुमुश्तगिन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं मिस्र सलाउद्दीन के लिए छोड़ दूंगा? वहाँ जब तक अय्यूबियों का खतरा है हम शाम में कभी भी महफूज नहीं होंगे। जब हम कुछ के साथ अपने ताल्लुकात ठीक कर लेंगे कायरा का रास्ता भी हमारे लिए खुल जाएगा। कैमास उससे कहता है तुम सलाउद्दीन से बहुत नफरत करते हो, नायब तो बन गए फिर भी कीड़ा तंग कर रहा है। यह सुनकर गुमुश्तगिन कहता है इसका नफरत और गुस्से से कोई ताल्लुक नहीं है कैमास, मशरिक में एक ही वक्त में 2 सितारे नहीं चमक सकते, इसलिए मैं वहाँ सायरा आती है। तो गुमुश्तगिन उससे कहता है क्या मिस्र में आपकी कमाई काफी नहीं है जो अपने बाबा की तरह शाम में नजरें जुमा ली? सायरा कहती है मेरे आने का मकसद तिजारत नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे वो राज बता दें जिसके मैं पीछे हूँ तो इस काम से फाते आप निकलेंगे। गुमुश्तगिन पूछता है राज क्या है? सायरा पूछती है अमीर गुकबरो और बोरो के बीच माजी में क्या हुआ, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। यह सुनते साथ ही गुमुश्तगिन उसे देखने लग जाता है। सराय में बोरो गुकबरो से पूछता है तुम कैसे यकीन कर सकते हो कि मैंने तुम्हारे लिए जाल बिछाया गुकबरो? तो गुकबरो कहता है ये वाज़ेह नहीं है कि ये कोई खेल है, पहले तो मैंने भी ऐसा सोचा लेकिन फिर मैंने देखा और समझा कि तुमने यही सोचकर मंसूबा बनाया। गलत मालूमात तुम्हारा जाती मुआवन ही लेकर आया था। बोरो कहता है मेरे मुआवन ने सिर्फ तुम्हें नहीं मुझे भी धोखा दिया, काश वो जिंदा होता और मैं उससे पूछ सकता कि हमें किसको भेज दिया। गुकबरो कहता है अफसोस अफसोस, अब भी साजिश। काश तुमने अपनी सारी इज्जत ना गवाई होती और मेरा सामना करते हुए कहते कि मैंने किया है, मान लेते। काश कहते कि हुक्म देकर अपने मुआवन को कत्ल किया, दुश्मन भी मर्द होता तो मैं उसकी कदर करता। बोरो चिल्लाते हुए कहता है मैं क्यों करूंगा ऐसा, मैं अपने भाई को क्यों मारने की कोशिश करूंगा, क्यों? गुकबरो कहता है क्योंकि मैंने सलाउद्दीन की बैत नहीं की। क्या तुमने इस फरीजे पर भेजने से पहले सलाउद्दीन की खिदमत करने को नहीं कहा था? जब मैंने इनकार किया तो क्या तुमने नहीं कहा था कि कुछ के मकसद के लिए तुम्हारी वफादारी पर शक है? बोरो कहता है मतलब कि मैंने तुम्हें अपने खेल में धकेला? हाँ। जवाब में गुकबरो कहता है जी हाँ, तुम अय्यूबियों ने कुछ के मकसद को अपने ऊपर लिया और जब ताकत हाथ आई तो मुतकब्बिर होने लगे। तुम लोगों ने हर चीज और हर उस शख्स को कुचलने का अहद किया है जो आपके रास्ते में आता है। आपने जंगी रियासत के हर कोने पर अपने तसल्लुत बढ़ाया और किसी दूसरे का नाम लेने की इजाजत ना दी और इसी वजह से आपने हमारे सुल्तान मरहूम की भी मुखालफत की। बोरो कहता है ये सच है कि मैं सुल्तान के खिलाफ खड़ा था, लेकिन हसद से नहीं वफादारी से। तुम लोगों को ढूंढने के लिए ताजिर राकीफ को सुल्तान के हवाले नहीं किया, मैंने उस रास्ते पर अपनी जान खतरे में डाली। गुकबरो उसकी बात करते हुए कहता है बकवास बंद करो, मेरे सिवा सिर्फ अल्लाह जानता है कि मुझ पर क्या गुजरी है। मैंने कहा कि बोरो मुझे धोखा नहीं देगा, मैंने कहा कि वो जिसने भी ऐसा किया उसे ढूंढ लेगा और उनका एहतसाब करेगा, लेकिन मैं गलत था। अगर तुम सच कह रहे हो तो तब कहाँ थे? तुम कहाँ थे? आकर बचा लेते ना, लेकिन नहीं, अय्यूबियों को सिर्फ जब मेरी जरूरत हो सामने आ जाते हैं। बोरो कहता है शर्म करो, क्या यह है तुम्हारी दोस्ती का सिला? क्या ये थी वफादारी? गुकबरो कहता है अभी भी बेशर्मी से वफादारी के बारे में बात कर रही हो। ये सुनते साथ ही बोरो उठता है और उसे थप्पड़ दे मारता है। दोनों तरफ के सिपाही भी आमने सामने आ जाते हैं।
गोगबोरो खड़े होकर कहता है कोई भी मुदाखलत ना करे। अगले लम्हे उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। शाम में गुमिश तगन सायरा से पूछता है बोरो को मारकर अपना बदला लेने के बजाय माजी के राज तलाश करने में आपका मकसद क्या है? जवाब में सायरा कहती है क्योंकि उसको मार देने से मेरा गुस्सा ठंडा नहीं होगा। उसकी तबाही की हर खबर मेरे लिए सोने की कीमत है। गुमिश तगन आगे बढ़ते हुए पूछता है तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि ये राज मुझे पता है? तो सायरा कहती है गोगबोरो आपके हाथ में है और आप ही हैं जिसने उसे एला के जहन्नुम से निकालकर दीवान में बुलाया। अगर आप मुझे गोगबोरो और बोरो के दरमियान झगड़े की वजह बताएं तो मैं आपको मिस्र में अपनी तिजारत का बड़ा हिस्सा दूंगी। गुमिश तगन मुस्कुराते हुए कहता है पुरकशिश लेकिन कुछ मालूमात बराए फरोख्त नहीं होते। सायरा कहती है आप ना भी बताएं तो भी मैं जल्द या बदेर इस राज को जान जाऊंगी और उस वक्त आप पिछताएंगे। गुमिश तगन गुस्से में आगे बढ़ते हुए कहता है गर्दन से मोटे कामों में टांग अड़ाकर आपको कहीं बाद में पछतावा ना हो और तुम्हें राज पे नहीं बल्कि तिजारत पे तवज्जो देनी चाहिए। सायरा कहती है ठीक है फिर ऐसा ही सही। ऐसा लगता है कि आपका तख्त इस राज पे टिका हुआ है लेकिन कोई भी राज हमेशा पोशीदा नहीं रहता। ये कहते साथ ही सायरा चली जाती है और गुमिश तगन कहता है बोरो से इसकी नफरत हमारे फायदे में है लेकिन यही नफरत हमारी राह में रुकावट बन सकती है। नजर रखना लड़की पे कैमास। सराय में बोरो और गोगबोरो एक दूसरे पर मुक्के बरसा रहे होते हैं। इसलिए में बोरो के सिपाही सराय में दाखिल होते साथ ही दूसरे सिपाहियों पे हमला कर देते हैं। अफरा तफरी पड़ जाती है। मौका देखते साथ ही अली और तुराब संदूक उठाते हैं और निकल जाते हैं मगर गोगबोरो उन्हें देख जाता है और चिल्लाते हुए कहता है रोको उन्हें रोको। ये सुनते साथ ही गोगबोरो के सिपाही उनके पीछे भाग पड़ते हैं और गोगबोरो भी जाने लगता है कि बोरो उसे दबोच लेता है। दोनों खूब जोर आजमाई करते हैं। फिर गोगबोरो कहता है तो तुम गरीब मुसलमानों के हुकूक पे डाका डालने लगे हो हाँ लालची खबीसो। जवाब में बोरो कहता है असल खबीस गुमिश तगन और कैमास हैं। वो अपने हाथों से जंगी रियासत के खजाने लूट रहे हैं। यह गफलत की नींद से बेदार होने का वक्त है गोगबोरो। तुम्हारे दुश्मन अयूबी नहीं बल्कि वो हैं। यह सुनते साथ ही गोगबोरो उस पे दर पे कई मुक्के बरसाता है। बोरो जमीन पे गिर जाता है और गोगबोरो कहता है बात यहीं पे खत्म नहीं होती बोरो, हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ, फिर मिलेंगे। ये कहते साथ ही गोगबोरो चला जाता है। बोरो उठता है और कहता है हम जरूर मिलेंगे भाई। कायरा में लैला जुमर्द के कमरे में आती है और वहाँ तलाशी करने लग जाती है। वो बिस्तर संदूक हर एक चीज खोलकर देखती है। कुछ देर की तलाश के बाद उस समय को याद करती है जब वो दरवाजे से जुमर्द को कपड़ों से निकाली की दवा पानी में डालते हुए देख रही थी। इस ख्याल के बाद लैला फिर से तलाश करने लग जाती है। बिल आखिर एक पोटली में से उसे वो बोतल मिल जाती है। वो शीशी लेकर मोहतात अंदाज में बाहर से आगे बढ़ी रही होती है कि जमशेद वहाँ पहुंचता है और पूछता है यहाँ क्या कर रही हो? ये किसका कमरा है? चोरों की तरह इधर उधर घूम रही हो? लैला शीशी छुपाते हुए कहती है क्या चोर जमशेद अफंदी क्या कह रहे हैं आप? जमशेद पूछता है क्या छुपा रही हो? चलो दिखाओ मुझे। कुछ देर सोचने के बाद लैला शीशी उसे दे देती है। जमशेद पूछता है ये किसका कमरा है बेटी? तुम इस शीशी का क्या करोगी? तो लैला कहती है ये जमुर्द का कमरा है। वो ये शीशी छुपा रही थी। मुझे यकीन है कि ये वही है जिसने शमसा खातून को बीमार किया। जमशेद कहता है तुम्हें कैसे यकीन है? बिला वजह शक करना बहुत बड़ा गुनाह है। लैला कहती है मैं मालूम करूंगी कि इसके अंदर क्या है। जवाब में जमशेद कहता है मैं इसका मुआयना करूंगा और आपको बता दूंगा। ठीक है अब इसे मेरे पास छोड़ दो। ये कहते साथ वो शीशी अपने पास रख लेता है। इसलिए जमुर्द वहाँ पे आती है और पूछती है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मेरे कमरे के बाहर क्या ढूंढ रहे हो? तो जमशेद बात पलटते हुए कहता है क्या इत्तेफाक है जमुर्द खातून, क्या ये आपका कमरा है? मैं और लैला यूं ही बातें कर रहे थे, अब मैं जा रहा हूँ। ये कहते साथ ही जमशेद चला जाता है। लैला भी गुस्से में उसे देखने के बाद आगे बढ़ जाती है। दूसरी तरफ वज़ीर सलाउद्दीन बाल्डोन के पास आते हैं। मलका मारिया और लाड़काई भी बाल्डोन के साथ मौजूद होते हैं। एक दूसरे से ताज़ियत करने के बाद वो दोनों बैठ जाते हैं। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं मौत बरहक है लेकिन नाहक मारे जाने वालों का दर्द कभी दूर नहीं होता। मैंने आपको यहाँ हकीम लतीफ की मौत का हिसाब देने के लिए तलब किया है। मारिया गुस्से से कहती है बराए मेहरबानी अपने अल्फाज पर तवज्जो दें, आपको हमारे बादशाह का हिसाब करने का कोई हक नहीं है। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं मेरा मसला बादशाह बाल्डोन से नहीं है, अगरचे इसने अपनी कम उम्र में बहुत दुख उठाए हैं और आप जैसे लालची लोगों में गिरा हुआ है ये, मुझे इन पर रहम आता है। लाड़काई कहता है बादशाह की मर्जी को कम ना समझें, हम इनके हुक्म पर हाजिर हैं। इन्होंने हकीम लतीफ के कत्ल का पर्दाफाश करने में बहुत मेहनत और बड़ी हिम्मत दिखाई। बाल्डोन कहता है हकीम लतीफ भी मुझ पर बहुत मेहरबान थे। मैंने और मेरे बाबा ने हमेशा उनकी बहुत तारीफ की। अगरचे कातलों का जानना मेरे लिए चौंका देने वाला था लेकिन मुझे यकीन दिलाया गया कि यह कितना अहम काम है। कातिल जिंदान में है। वज़ीर सलाउद्दीन पूछते हैं कौन है कातिल? तो मारिया बोलते हुए कहती है बालेन, जो आपके बहुत करीब था वो है कातिल। बाल्डोन कहता है हकीम लतीफ के कातिल कौन? बालेन और विलियम है। यह सुनते साथ ही वज़ीर सलाउद्दीन सोच में पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ बर्फीले जंगल में बोरो के साथी संदूक लेकर घोड़े भगा रहे होते हैं जबकि गोगबोरो अपने साथियों के साथ उनके पीछे पीछे होता है। गोगबोरो को करीब देखते साथ ही वो घोड़ा गाड़ी रोक लेते हैं और संदूक वहीं पे छोड़कर वो सब भाग जाते हैं। गोगबोरो तेजी के साथ संदूक के पास आता है और सुख का सांस लेता है। वो संदूक को खोलता है जो सोने से भरा होता है। उधर वज़ीर सलाउद्दीन बाल्डोन से पूछते हैं बालेन ऐसा कुछ क्यों करेगा? तो मारिया कहती है बादशाह बनने के लिए। दर हकीकत ये बादशाह बाल्डोन पर कातलाना हमले की खुफिया कोशिश थी। वो हकीम लतीफ को मारकर इज्जत माँ को मौत के गड़े में धकेलना चाहता था। काजी फाजिल कहते हैं किसी बादशाह की मौत उसके तख्त पर बैठने के लिए काफी नहीं है। तो लाड़काई कहता है यकीनन बालेन ने शहजादी सबीला को भी धोखा दिया है। उसने अपने मजमूम मकासद के लिए शहजादी को शादी पे राजी किया। विलियम शुरू से ही इस मंसूबे का हिस्सा था। वज़ीर सलाउद्दीन उसकी जानिब देखते हुए कहते हैं ये आपका फैसला है, फैसला इंसाफ पे होने के लिए दोनों फरीकों को सुना जाना चाहिए। अगर आपको यकीन है तो उन्हें मेरे हवाले कर दे, मैं खुद उन्हें सजा दूंगा। मगर बाल्डोन कहता है यह मुमकिन नहीं है, कातलों को कुछ में सजा दी जाएगी जैसा कि वो मुस्तहिक हैं। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं ये आपकी बादशाही की शर्मिंदगी को मिटाने के लिए काफी नहीं होगा, मैं तहकीकात जारी रखूंगा। फिर खड़े होकर उससे कहते हैं बादशाह बाल्डोन, मैं आपको एक छोटा सा मशवरा देता हूँ, अपने आस पास वालों को सुने लेकिन फैसला हमेशा खुद करें। यह सुनकर मारिया को बहुत गुस्सा आता है और वज़ीर सलाउद्दीन चले जाते हैं। कैरेक में कमांडर चातलियोन से कहता है खबर मिली है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बादशाह बाल्डोन से मिले हैं। चातलियोन मैला से कहता है मुझे लड़काई पर भरोसा नहीं है और ना ही मलका मारिया पर। वो हकीम लतीफ हो सकता है कि वो उसके कत्ल से मेरा ताल्लुक बेनकाब करके मुझे उनके हवाले कर दें। मैला कहती है मारिया एक ज़हीन औरत है, वो आप जैसी तहादी को खोना नहीं चाहेगी, इसलिए मैं सबीला वहाँ पे आती है। तो मैला खड़े होकर कहती है मुझे बादशाह माले के जनाजे में शिरकत ना करने का अफसोस है, कुछ से कजीम बादशाह से महरूम हो गया। सबीला उसे कहती है अगर मुमकिन हो तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगी कौन? यह सुनकर चातलियोन खड़ा हो जाता है और कहता है मैं बालेन के लिए गमगीन हूँ, ये वाकई बदकिस्मती की बात है। ये कहते साथ ही चातलियोन चला जाता है और वो दोनों बैठ कायरा में जुमर्द अपने कमरे में आकर उस पोटली में शीशी देखती है मगर वहाँ से शीशी नहीं मिलती। ये देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है
वो बोतल कहाँ है? ये कहते साथ उस समय को याद करती है जब जमशेद और लैला को उसने कमरे के बाहर देखा था। इस ख्याल के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है। कैरेक में सबीला मैला से कहती है, मैला मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ। बालेन कदम बाकदम मौत की तरफ बढ़ रहा है। तो मैला कहती है, मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने जो कुछ सुना उससे उसका जुर्म में मुलव्वस होना सबूतों से साबित हो चुका है। सबीला कहती है, क्या? मैला तुम्हें अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि बालेन कभी ऐसा काम नहीं करेगा। मैला कहती है, सबीला लोग बदल जाते हैं, ये तब्दीलियां अक्सर हमें हैरान कर देती हैं। सबीला कहती है, मारिया है वो जिसने हकीम लतीफ के कत्ल का हुक्म दिया और बालेन पर इल्जाम लगाया। चातियोन भी इसमें मुलव्वस है। अगर तुम मेरा साथ दो तो चातियोन से छुटकारा हासिल करना आसान हो सकता है। यह सुनते साथ ही बैठ से गुजरता हुआ चातियोन रुक जाता है। जवाबन मैला कहती है, सबीला चातियोन मेरा शोर है, मैं उन पर लगाए गए झूठे इल्जाम को कबूल नहीं करती। यह सुनकर चातियोन बहुत खुश होता है और आगे बढ़ जाता है। सबीला मैला से कहती है, मैला जो कुछ मैं सुन रही हूँ मैं यकीन नहीं कर सकती। क्या तुम चातियोन से जान नहीं छुड़वाना चाहती? मैला कहती है, मैं देख रही हूँ कि तुम बालेन से कितना प्यार करती हो सबीला, लेकिन बहुत ज्यादा मोहब्बत का मतलब बहुत ज्यादा उम्मीद है। तुम जब तक पर उम्मीद हो तुम्हारा दर्द बढ़ता रहेगा। तुम्हें कबूल करना होगा कि बालेन मर जाएगा। यह सुनते साथ ही सबीला परेशान होते हुए चली जाती है और बैठ खड़े मार्कोस के पास पहुंचती है तो मार्कोस पूछता है, क्या कौन मैला हमारी मदद करेगी? सबीला नाम सर लाती है और उससे कहती है, हमने सुल्तान सलाउद्दीन को पैगाम भेजा है, बाल्डोन से मिलने के बाद वो मुझसे मिलेगा, हमें जल्दी जाना है। ये कहते सुनते साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ में मारिया बाल्डोन से कहती है, सुल्तान सलाउद्दीन के सामने आपका मुकाम ये इस बात का बड़ा सबूत है कि आप कितने अजीम बादशाह होंगे। फिर लड़का कहता है, सुल्तान सलाउद्दीन ने देखा कि कुछ बगैर सरबराह के नहीं है। बाल्डोन कहता है, लेकिन मेरे ज़हन में कुछ है। सुल्तान सलाउद्दीन को इतना यकीन क्यों था? हकीम लतीफ को किसने मारा? क्या वो कौन बालेन नहीं था? यह सुनते साथ ही मारिया और लड़काई परेशान हो जाते हैं। जंगल से आगे बढ़ते हुए वज़ीर सलाउद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं, बालेन कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेगा, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कुछ की बादशाही के लिए साजिश की है। तो काजी फाजिल कहते हैं, हालात देखते हुए वाज़ेह है कि बादशाह बाल्डोन ज़ेर असर है। मलका और लड़काई ने बच्चे को कायल किया है कि बालेन ही कातिल है। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं, लेकिन हकीकत जल्दी सामने आ जाएगी। सबीला ने पैगाम भेजा है, वो यहाँ पे हमारे साथ मिलना चाहती है, हम उसे जान लेंगे कि कुछ के महल में क्या हुआ था। अगले लम्हे सबीला मार्कोस के साथ वहाँ पहुंचती है। कुछ में मारिया बाल्डोन से कहती है, मैं नहीं जानती कि आप कितने बाशाऊर हैं, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन और बालेन के दरमियान ऐसी दोस्ती है जो कुछ के मफादात से मुतसादिम है। बाल्डोन कहता है, मैं इसके बारे में सब जानता हूँ, हत्ता कि कौन बालेन सलाहुद्दीन को कितनी अच्छी तरह जानते हैं मैं ये भी जानता हूँ। ये कहते साथ उस समय को याद करता है जब वज़ीर सलाहुद्दीन से मिलने से पहले वो बालेन के पास गया था। इस ख्याल के बाद लड़का कहता है, मकसद वाज़ेह है, बालेन को तख्त पर बिठाना और कुछ में एक कठपुतली बादशाह पैदा करना जो मुसलमानों का दोस्त हो। यह सुनकर बाल्डोन पूछता है, क्या वाकई मुसलमानों का दोस्त होना इतना बुरा और खतरनाक है? मारिया कहती है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इसके तमाम मसीही दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। बादशाह सलामत देखें, बालेन और उसका साथी विलियम वो कुछ के लिए खतरा है, वो तख्त के लिए खतरा है, उन्हें फौरी तौर पर फांसी दी जानी चाहिए। यह सुनते साथ ही बाल्डोन सोच में पड़ जाता है। जंगल में सबीला वज़ीर सलाहुद्दीन से कहती है, आपसे मिलने की मेरी दरख्वास्त कबूल करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ना तो बालेन और ना विलियम लतीफ के कत्ल में मुलव्वस हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैंने वाकई ऐसा नहीं सोचा था, जो कुछ हुआ वो मलका और लाड़काई की साजिश की बदौलत हुआ। सबीला कहती है, बाल्डोन बीमारी की वजह से तख्त से दस्तबरदार हो गया था, मैं और बालेन शादी करने वाले थे, लेकिन मारिया और लाड़काई ने हकीम लतीफ को मार डाला। उन्होंने बालेन को बादशाह बनने से रोकने के लिए ये मंसूबा तैयार किया। जहाँ तक मेरे मासूम भाई बाल्डोन का ताल्लुक है, वो मारिया के हाथों की कठपुतली बन चुका है। काजी फाजिल कहते हैं, तो लतीफ तख्त के तसादुम में कुर्बान हो गया है ना? सबीला कहती है, बदकिस्मती से बालेन आपके सामने बहुत शर्मिंदा है क्योंकि वो अमानत की हिफाजत नहीं कर सका, उसने मुझे आपसे माफी मांगने का कहा है। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, मैं बालेन के लिए गमज़दा हूँ, लेकिन माफी मांगने का अब कोई फायदा नहीं। सबीला कहती है, बालेन और विलियम को किसी भी वक्त फांसी दी जा सकती है, अगर ऐसा हुआ तो यह हम सब के लिए तबाही होगी, मुझे उन्हें बचाने के लिए आपकी मदद दरकार है। जवाबन वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, शहजादी सुने, मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या है और मैं नहीं जानता कि आप किस तरह चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं, लेकिन ये आपका ज़ाती मसला है। आज के बाद अगर मैं कुछ आया तो सिर्फ फाते बन कर आऊंगा और जब वो दिन आएगा तो हर फर्द को उसके गुनाह और कमजोरी की सजा दी जाएगी। यह सुनकर सबीला मायूस होकर लौट जाती है। उसके जाने के बाद वज़ीर सलाहुद्दीन काजी फाजिल से कहते हैं, कुछ में अलयारों को खबर करो काजी फाजिल, अगर उन्होंने बालेन को फांसी देने की कोशिश की तो उन्हें मुदाखलत करनी होगी। यह सुनकर काजी फाजिल कहते हैं, जैसे आपका हुक्म, लेकिन आपने शहजादी को इसके बारे में क्यों नहीं बताया कि वो पुरस्कून होकर जाती? वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, यह खुफिया रखना ही बेहतर है, अब से हम किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। कुछ में बाल्डोन के सामने 2 मोहरें लाई जाती हैं। मारिया उसे कहती है, ये मोहरें बालेन और विलियम की किस्मत का फैसला करेंगी, अगर आप उन्हें माफ करना चाहते हैं तो सफेद मोहर तोड़ दें और अगर उनकी सजा मौत है तो आपको स्याह मोहर को तोड़ना होगा। कुछ देर सोचने के बाद बाल्डोन स्याह मोहर तोड़ देता है। ये देखकर लड़के और मारिया अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं और मारिया कहती है, जिल्लात को इतला दें ताकि तैयारियां शुरू की जा सकें, कुछ को 2 अजीम गद्दारों से निजात मिलेगी। कायरा में फातिमा खातून और लैला शमसा के पास मौजूद होती है, इसलिए मैं ज़मर दवा लेकर वहाँ आती है तो फातिमा खातून उससे कहती है, शमसा को उठाने में मेरी मदद करो। ज़मर दवा रखकर उनकी मदद करने लग जाती है तो लैला आहिस्ती से दवा गिरा देती है। ये देखकर फातिमा खातून बहुत परेशान हो जाती है, जबकि ज़मर कहती है, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बना लाती हूँ। ये कहते साथ वो लैला को गुस्से में देखती है और चली जाती है। दूसरी तरफ जमशेद मारून अफंदी के पास जाता है और उन्हें शीशी देते हुए कहता है, मुझे मालूम करके बताएं कि ये क्या है। सोंगे और मुआयना करने के बाद मारून अफंदी कहते हैं, ये हैन बैन जड़ी बूटी है, एहतियात के साथ इसे इस्तेमाल करना चाहिए। जमशेद कहता है, हैन बैन ये नज़ले जुकाम के इलाज के लिए है ना, क्या हम इसे खांसी के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? तो मारून अफंदी कहता है, क्या मजाक करें जमशेद साहब, ये खाने पीने की जड़ी बूटी नहीं है, ये जख्मों के इलाज के लिए मरहम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर ये पी जाए तो इससे गले और पेट में शदीद जलन होती है। जमशेद कहता है, अच्छा ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई पी ले तो क्या होगा? मारून कहता है, हलक, खुश्क, खांसी में इजाफा, फिर उसकी आवाज बंद हो जाती है और आखिर में सांस भी बंद हो जाती है। यह सुनकर जमशेद बहुत परेशान हो जाता है और शीशी लेकर चला जाता है। कुछ में सबीला आगे बढ़ ही रही होती है कि वहाँ पे आने वाला लड़का कहता है, मैं आपका इंतजार कर रहा था, मैं चाहता था कि आप बुरी खबर मुझसे सुनी। बादशाह बाल्डोन ने विलियम और बालेन को सजा दे दी, उन्हें फांसी दी जाएगी। यह सुनकर सबीला बहुत परेशान हो जाती है और लड़का उसे कहता है, मेरी पेशकश अब भी कायम है शहजादी, शादी कर लो तो बालेन जिंदा रहेगा। सबीला परेशानी के आलम में चली जाती है। जंगल में कुछ लोग गोगबोरों के पास पहुंचते हैं। वो घोड़ा गाड़ी से उतरने
سننے کے بعد ایک فرمان گوگبورو کو دکھاتے ہیں، جو دیکھنے کے بعد گوگبورو سونے کا صندوق ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے اللہ آپ سے راضی ہو۔ مسلمان کافی پریشان تھے، آخرکار ہمارا شہزادہ ان کے لیے رزق لے کر آیا ہے۔ یہ کہتے ساتھ وہ صندوق کھولتا ہے اور جب اوپر سے سکے ہٹاتا ہے تو نیچے پتھر ہی پتھر ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ کہتا ہے گوگبورو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھ کر گوگبورو کو بھی بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے بورو بورو بورو، میں تمہیں دکھاؤں گا کہ مظلوم کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ادھر بورو کے ساتھی سونے کا صندوق لے کر بورو تک جا پہنچتے ہیں۔ سونو دیکھتے ہوئے بورو اسلامے کو یاد کرتا ہے جب دوسرے صندوق کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا آپ واپس آئیں گے اور اصلی صندوق کو اس صندوق سے بدل دیں گے۔ جب گوگبورو آپ کو پکڑے گا آپ صندوق چھوڑیں گے اور بھاگ جائیں گے۔ اس خیال کے بعد بورو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کہ ہم شہزادے اسماعیل کے حق کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ جلد یا بدیر گوگبورو کو احساس ہو جائے گا کہ اس نے لالچ سے اتحاد کر لیا ہے۔ کچھ میں ماریا بالڈون سے کہتی ہے ولیم اور بالین کو سزائے موت سنانے کا شکریہ۔ ہر کوئی سمجھ جائے گا کہ جو بھی جرم کرے گا سزا کے بغیر نہیں رہے گا۔ اس لیے سبیلا وہاں پہ آتی ہے اور چلاتے ہوئے کہتی ہے کیا میں نے جو سنا وہ سچ ہے؟ کیا بالین اور ولیم کو پھانسی دی جائے گی؟ ماریا کہتی ہے شہزادی میں نے آپ کو خبردار کیا تھا آپ کے سامنے۔ سبیلا غصے سے کہتی ہے کیا یہ سچ ہے؟ کیا انہیں پھانسی دی جائے گی؟ تو بالڈون کہتا ہے ہاں انہیں پھانسی دی جائے گی۔ یہ سن کر ماریا کہتی ہے آپ نے بادشاہ کا فیصلہ سن لیا ہے شہزادی؟ سبیلا اسے دبوچتے ہوئے کہتی ہے یہ بادشاہ کا فیصلہ نہیں بلکہ تم شیطان کا فیصلہ ہے، تم بڑی شیطان ہو، میں تمہیں مار ڈالوں گی۔ سپاہی اسے پکڑ کر پیچھے کر لیتے ہیں۔ سبیلا مزید کہتی ہے جب سے تم اس محل میں آئی ہو بدنصیبی نہیں رکی۔ بالڈون کہتا ہے بس بہت ہو گیا، آپ کو اب اسے قبول کرنا ہوگا، میں بادشاہ چہارم بالڈون ہوں۔ اگر آپ نے دوبارہ اس بے ادبی کو دہرایا، سبیلا کہتی ہے تو تم کیا کرو گے بادشاہ چہارم بالڈون؟ کیا تم مجھے بھی مار دو گے؟ یہ کہتے ساتھ وہ خود کو چھڑوا کر چلی جاتی ہے اور اسے اس طرح سے دیکھ کر ماریا بہت خوش ہوتی ہے۔ قاعدہ میں زمرد آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، جمشید محل کی جانب جا ہی رہا ہوتا ہے کہ اسے دیکھ کر ایک دم سے اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کمرے میں لیلا شمسا سے کہتی ہے شمسا بہن میں آپ کو زمرد کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ شمسا کہتی ہے لیکن لیلا کیا ہم نے اس کے بارے میں پہلے بات نہیں کی تھی؟ لیلا کہتی ہے شمسا بہن، مگر اس کے مزید کچھ کہنے سے پہلے وزیر صلاح الدین وہاں پہ آتے ہیں اور لیلا چلی جاتی ہے۔ وزیر صلاح الدین شمسا کے پاس بیٹھتے ہیں اور اسے اس کا حال احوال پوچھتے ہیں تو شمسا کہتی ہے پریشان مت ہوں صلاح الدین، میں آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہی ہوں، میں آپ کو اپنی آواز سے محروم نہیں کروں گی۔ اس لیے میں خادمہ کھانا لے کر آتی ہے تو وزیر صلاح الدین شمسا کو کھانا کھلانے لگ جاتے ہیں۔ شمسا ان سے کہتی ہے آج آپ کی ماں نے مجھے یوسف اور زلیخا کا قصہ سنایا، میں نے اسے انجیل میں بھی پڑھا ہے لیکن میں نے پہلے کبھی اسے اس طرح محسوس نہیں کیا۔ آپ کا نام یوسف ہے اور آپ مصر میں ہیں۔ میں نے خود سے پوچھا کہ کیا میں زلیخا ہو سکتی ہوں جس طرح اس نے حضرت یوسف سے محبت کی، کیا میں اپنے یوسف سے اس طرح محبت کر سکتی ہوں؟ وزیر صلاح الدین کہتے ہیں آپ کو میری قسمت میں لکھنے کے لیے میں اللہ کا بے شمار شکر۔ کچھ کے زندان میں بالین ولیم سے پوچھتا ہے ولیم کیا تم موت سے ڈرتے ہو؟ تو ولیم کہتا ہے اتنا ہی جتنا پیدا ہونے والا بچہ ڈرتا ہے، کچھ بغیر مالک کے رہ جائے گا، اس خیال کی تکلیف ہر چیز سے زیادہ گہری ہے۔ بالین کہتا ہے کیا تم جانتے ہو کہ مجھے اس کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے؟ ولیم حیرانگی سے پوچھتا ہے مجھے پرواہ نہیں ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ بالین کہتا ہے کیا یہ خدا کا شہر نہیں ہے؟ وہ جس کو دینا چاہے گا کچھ اس کے حقیقی مالک کو دیا جائے گا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا، صرف سبیلا کے لیے۔ جب میں شروع سے ہماری کہانی کے بارے میں سوچتا ہوں تو راستے کے بیچوں بیچ چھوڑ جانے کے اس احساس سے میرا دم گھٹتا ہے ولیم۔ اس لیے میں سبیلا وہاں پہ آتی ہے اور بالین سے کہتی ہے تمام دروازے بند ہیں، میں نہیں جانتی کہ کیا کروں، میں بہت بے بس ہوں، سب سے پہلے میرا بھائی اور اب۔ تو بالین اسے کہتا ہے خود کو مت تھکاؤ، الفاظوں کی اب کوئی قیمت نہیں رہی، مجھے یہ قبول کرنے میں کافی وقت لگا لیکن یہ زندگی مایوسی سے بھری ہوئی ہے۔ میرا سب سے بڑا خوف اپنے اصولوں سے غداری کرنے والے ایک شخص کے طور پر مرنے کا تھا۔ میں اپنے صاف ضمیر اور فخر سے اٹھے سر کے ساتھ خدا سے ملوں گا۔ خود کو پریشان نہ کرو، مضبوط رہنے کی کوشش کرو، کم از کم اپنے پیٹ میں پلنے والے بچے کے لیے۔ قاہرہ میں زمرد آگے آگے جمشید اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ دیکھتے دیکھتے زمرد ایک گھر میں داخل ہو جاتی ہے۔ زمرد کے پیچھے پیچھے ایک شخص بھی اس گھر میں داخل ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر جمشید اس گھر کے پاس آتا ہے اور کھڑکی میں سے ان کی باتیں سننے لگ جاتا ہے۔ اندر زمرد سونے کی تھیلی اس شخص کو دیتی ہے تو وہ شخص اس سے کہتا ہے تاکہ آواز پہ زیادہ دباؤ نہ پڑے، تمہیں یہ دوا وقفے وقفے سے تھوڑی مقدار میں استعمال کرنی ہوگی ورنہ ہمارا کام ادھورا رہ جائے گا اور تم پکڑی جاؤ گی۔ یہ سن کر جمشید بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ شخص مزید کہتا ہے یہ بھی لے لو، ضرورت پڑنے پر تمہاری جان بچانے والا تریاک زہر۔ زمرد پوچھتی ہے میں اسے کیسے استعمال کروں گی؟ وہ شخص کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کچھ میں سبیلا لاڑگائی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے مجھے قبول ہے لاڑگائی، میں تم سے شادی کروں گی۔ یہ سن کر لاڑگائی بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں جانتا تھا۔ سبیلا کہتی ہے تم بالین اور ولیم کو زندان سے باہر نکالو گے؟ یہ سن کر لاڑگائی کہتا ہے بالکل، جیسا کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ سبیلا مزید کہتی ہے لیکن تم بالین سے ہمیشہ کے لیے دور رہو گے۔ یہ سن کر لاڑگائی کہتا ہے آپ ایک سچی عاشق ہیں شہزادی، اس میں کوئی شک نہیں، اب سے سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ چاہیں گی۔ سبیلا کہتی ہے تمہارے لیے خوشی کی خبر یہ ہے کہ تم ایک لاش سے شادی کرو گے لاڑگائی، تم جب بھی مجھے دیکھو گے تمہیں موت کی ٹھنڈی آغوش محسوس ہوگی۔ لاڑگائی کہتا ہے لیکن یہ سب کچھ ہمارے درمیان رہنا چاہیے، اگر ہمارا معاہدہ بالین کو پتہ لگ گیا تو میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سبیلا چلی جاتی ہے۔ شام میں گگبورو بہت غصے میں محل کی جانب بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سائرہ آصف کے ساتھ اسے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ آصف کہتا ہے میں نے حکم کے مطابق آدمی تیار کر لیے ہیں، وہ قدم بقدم گگبورو کا تعاقب کریں گے۔ سائرہ کہتی ہے بہت خوب، ان دونوں پرانے دوستوں کے درمیان کیا چل رہا ہے چلیں یہ معلوم کرتے ہیں۔ قاہرہ میں جمشید اس گھر کی جانب دیکھتے ہوئے کہتا ہے او میرے خدا میں اب کیا کروں، کیا میں اندر جا کر اس سے بات کروں یا محل جا کر بتا دوں، لیکن وہ اس کی جان نہیں بخشیں گے۔ وہ شخص نکلنے کے بعد آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد جمشید زمرد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے چھوٹی ناگن، میں سب کچھ جانتا ہوں، میں ان تمام چالوں کو جانتا ہوں جو تم کر رہی ہو۔ کیا تم شمسا سلطانوں کو زہر دینے کی کوشش کر رہی ہو؟ بیٹی یہ تم نے کہاں سے لیا؟ تم سے کون یہ کروانا چاہتا ہے؟ زمرد ڈرتے ہوئے کہتی ہے میں نے کسی کو زہر نہیں دیا۔ جمشید کہتا ہے کیا واقعی؟ کیا کون سمیلا نے تمہیں بھیجا ہے؟ سچ بتاؤ سچ، دیکھو اگر اس سب کے پیچھے کون سا ہے تو میں اس سے بات کروں گا، ہم مل کر اس کا حل نکال لیں گے۔ میری بیٹی تم بہت چھوٹی ہو، وہ تمہیں سزا دیں گے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار ڈالیں گے۔ اس لیے میں وہ شخص پیچھے سے آتا ہے اور خنجر جمشید کی پیٹ میں گھوم دیتا ہے۔ جمشید زمین پہ گرتا ہے اور اس کی سانسیں بند ہو جاتی ہیں۔ زمرد پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے یہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں نے وہی کیا جو وہ تمہارے ساتھ کرتا، اب یہاں سے بھاگو اور جو کام کرنے کا ہے وہ کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی زمرد چلی جاتی ہے۔ کچھ میں لاڑگائی کمانڈر سے کہتا ہے تیاریاں شروع کر دو، ہم آج رات بالین اور ولیم کو زندان سے نکالیں گے۔ یہ سن کر کمانڈر کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط سنا ہے جناب۔ تو
लड़का उससे कहता है तुमने कुछ गलत नहीं सुना, जो मैंने कहा वो करो। शाम का इमाज गुमिश्तगिन से कहता है गोगबोरो की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई, क्या हालात खराब हो सकते हैं? तो गुमिश्तगिन कहता है फिक्र ना करो, गोगबोरो अपने शुरू करता काम कभी अधूरा नहीं छोड़ता। तो वहाँ दाखिल होने वाला गोगबोरो कहता है लेकिन इस बार वो अपना काम मुकम्मल नहीं कर पाया अमीर गुमिश्तगिन, मैं एक ऐसे जाल में फंस गया कि मैं मिल्लत इस्लामिया के मफाद को अपने जाती मफाद पर तरजीह दी। कैमास पूछता है क्या सोने के साथ कुछ बुरा हुआ है? हाँ। तो गोगबोरो कहता है अय्यूबियों ने मुसलमानों को भेजा हुआ सोना चुरा लिया, हमारा मंसूबा किसी को पता चल गया और उसने सलाउद्दीन को इतला दी। गुमिश्तगिन खड़े होकर गुस्से से कहता है गारतो, उनके लिए क्या मिस्र की दौलत काफी नहीं थी कि अब वो मजलूमों के सोने की भी लालच कर रहे हैं? कैमास कहता है वो नहीं रुकेंगे, अब शाम, मौसल और हलब की बारी भी आएगी, हम उन्हें जितना ज्यादा मौका देंगे वो उतने ही जंगली बनकर झपटेंगे। गुमिश्तगिन कहता है वो अपने आखिरी अंजाम को पहुंचेंगे, या तो हम या वो, हम इस मसले को जड़ से खत्म करेंगे, मगर सलाउद्दीन की मौत के सिवा ये जड़ से खत्म नहीं होगा। गोगबोरो कहता है मैं फितने के खौफ से अब तक खामोश रहा, लेकिन अब ऐसी कोई चीज नहीं जो मुझे रोक सके, मैं खुशी से इस लड़ाई में कूद पड़ूंगा। गुमिश्तगिन उसे थपकी देते हुए कहता है तुम इसमें कामयाब होगे, उम्मत हमेशा तुम्हारी एहसानमंद रहेगी गोगबोरो। जवाब में गोगबोरो कहता है मैं एहसान या इनाम की तलाश में नहीं, हक के रास्ते पर चलना ही मेरे लिए काफी है, मेरी तरफ से खबर का इंतजार करो। ये कहते साथ ही गोगबोरो चला जाता है। गुमिश्तगिन खुश होते हुए कहता है सोना खो गया, जाने दो इसे, हमें इसके बदले में सलाउद्दीन की लाश मिल जाएगी। कैमास कहता है लेकिन सलाउद्दीन को खबर कौन दे सकता है? गुमिश्तगिन कहता है मैं जरूर मालूम कर लूंगा। कायदा में बोरो सोना सलाउद्दीन यूबी के सामने खोल देता है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं शाबाश बोरो, ये खजाना आर्जी तौर पे हमारी अमानत में है, लेकिन जब वक्त आएगा तो हम इसे शाम के खजाने में वापस रख देंगे। क्या तुमने गोगबोरो से बात की? तो बोरो कहता है मैंने बात की लेकिन उसने नहीं सुनी, अगर वो सुन लेता तो मुझे संदूक किस तरह उठा के ना लाना पड़ता। काजी फाजिल कहते हैं गोगबोरो की हरकतें और रवैया अजीब है, ये मसला इतना आसान नहीं है। बोरो कहता है जिसने उसे कैद में रखा था उसने बरसों उसके कान अय्यूबियों के खिलाफ शदीद दुश्मनी से भरे, उसकी ज़बान से जहर टपकता है, उसकी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मुझे नहीं मालूम कि उनका क्या मंसूबा था और उन्होंने क्या किया, लेकिन वो गोगबोरो के ज़हन को मुकम्मल तौर पर उलझाने में कामयाब हो गए। ये सुनकर वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं वो साजिश करते हैं और अल्लाह भी तदबीर फरमाता है, और बेशक अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है, इंशाल्लाह सब खैर होगी। रात के वक्त कुछ के जिंदान में विलियम बालिन से कहता है हम कल सुबह आखिरी बार तुलुए आफ्ताब देखेंगे। बाहर लड़काए और कुछ के सिपाही आपस में उलझ रहे होते हैं। यह सुनकर बालिन और विलियम भी तैयार होकर खड़े हो जाते हैं और वो ये समझते हैं कि उन्हें फांसी के लिए ले जाया जा रहा है। बाहर लड़काए के सिपाही दूसरे सिपाही पे टूट पड़ते हैं और उन्हें मौत के घाट उतारने के बाद कमांडर आगे बढ़ता है और जिंदान का दरवाजा खोल देता है, फिर उन्हें कपड़े देते हुए कहता है फौरन ये कपड़े पहन लो। बालिन पूछता है क्या मतलब है इसका? कमांडर कहता है ज्यादा बात मत करो, जो कहा वो करो, अगर जिंदा रहना है तो जल्दी करो, राहदारी में कोई मुहाफिज नहीं है, अगर आप जल्दी से आगे बढ़ते हैं तो महल से बासानी निकल सकते हैं। बालिन पूछता है तुम बताओगे तुम्हें किसने भेजा है? मगर उस सिपाही कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप दोनों को तेजी से आगे बढ़ना होगा। विलियम इशारा करता है और वो दोनों कपड़े बदलने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद वो दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं और दरवाजे के पास पहुंचकर बालिन रुक जाता है। विलियम उससे कहता है चलो बालिन किस चीज का इंतजार कर रही हो? तो बालिन उससे कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो हो रहा है वो अजीब है, हमारी मदद कौन और क्यों कर रहा है? तो विलियम उससे कहता है हाँ तुम ठीक हो, ये थोड़ा अजीब तो है, लेकिन चलो इसके बारे में बात करेंगे। बालिन कहता है जब उन्हें मालूम होगा कि हम फरार हो गए हैं तो वो सबीला पर इल्जाम लगा सकते हैं, वो उसे तकलीफ देंगे। मैं सबीला के पास जा रहा हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तुम एम्बुलेंस जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं सबीला को लेकर आऊंगा। पहले तो विलियम उसे काफी समझाता है, बालिन नहीं मानता तो विलियम कहता है आपके लिए नेक तमन्नाएं। वो दोनों अपने अपने रास्ते रवाना हो जाते हैं। उधर एक सराय में गोगबोरो सिपाही से कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम कायरा महल में जाओ और सुल्तान सलाउद्दीन से मिलो। सिपाही कहता है मेरे अमीरी मैं कैसे करूंगा, क्या उनसे मिलना इसके अंदर आसान है? तो गोगबोरो कहता है तुम बोरो के साथियों में से एक बनकर जाओगे, तुम्हारे गंदे और फटे हुए कपड़े जाहिर करेंगे कि तुम पे हमला हुआ है और तुम्हारे सरदार ने तुम्हें महल से मदद मांगने के लिए भेजा है। सिपाही पूछता है उन्होंने अगर पूछा कि हमला किसने किया है तो क्या कहूंगा? जवाब में गोगबोरो कहता है उन्हें कहना कि हमला गोगबोरो ने किया है। सिपाही सोने की थैली लेकर चला जाता है। कुछ में सबीला बहुत परेशान होती है और बालिन के लिए दुआएं मांग रही होती है, इसलिए में बालिन उसके पास आता है और कहता है सबीला किसी ने जिंदान से भागने में हमारी मदद की, क्या तुमने ऐसा कुछ किया है? तो सबीला कहती है नहीं मैंने कुछ नहीं किया। बालिन कहता है बहरहाल हमें फौरन निकलना होगा, चलो एब्रेन में जाकर मिलते हैं। विलियम वहाँ पे इंतजार कर रहा है मगर सबीला कहती है बालिन में नहीं आ सकती। बालिन कहता है वो तुम्हें हमारे फरार हो जाने का जिम्मेदार ठहराएंगे, मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा, चलो। सबीला फिर से उसे झड़कते हुए कहती है मैं नहीं आऊंगी। बालिन पूछता है क्या मतलब है इस बात का? तो सबीला कहती है मैंने बहुत सोचा बालिन, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, यही सच है, मैं ऐसा नहीं चाहती, मैं इस तरह नहीं रहना चाहती, ये हम दोनों के लिए सही है। बालिन परेशान होते हुए कहता है ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है। जवाब में सबीला कहती है बालिन मैंने कह दिया तो कह दिया, मैं खुद कह रही हूँ कि मैं शादी नहीं करना चाहती, अब यहाँ से जाओ। बालिन बहुत गमगीन होता है और चला जाता है। उसके जाने के बाद सबीला कहती है मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम जियो बालिन, इसलिए मैं उसे पेट में बहुत तकलीफ महसूस होती है और वो गिर जाती है। वो दर्द में कराते हुए कहती है मत जाओ बालिन मत जाओ, मगर बालिन जा चुका होता है। उधर उमर मल्ला एक मुकाम पे बैठे तस्बीह पढ़ रहे होते हैं और फिर आगे बढ़कर वजू करने के लिए कुएं के पास जाते हैं। इसलिए में चौके में मलबूस एक शख्स वहाँ आता है। उमर मल्ला उससे कहते हैं मुझे वजू करना है, लिहाजा थोड़ा पानी डाल के दो। वो शख्स आगे बढ़ता है और पानी डालता है, मगर वो पानी नहीं बल्कि खून होता है। ये देखकर उमर मल्ला बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे खून से वजू करवाओगे, तुम कौन हो? तो वो शख्स करातेगन अपना चेहरा अया कर देता है, फिर उनसे कहता है मुझे माफ कीजिएगा अफंदी, उन्होंने मुझे ये फरीजा सौंपा है। इसके साथ ही उमर मल्ला हड़बड़ाते हुए उठ जाते हैं और यह अजीबो गरीब उनका ख्वाब होता है। वो अस्तगफिरुल्लाह पुकारते ही चले। कायरा में बोरो तेजी से वज़ीर सलाउद्दीन के पास आता है और कहता है गोगबोरो की तरफ से खबर आई है। वज़ीर सलाउद्दीन पूछते हैं कैसी खबर, क्या हुआ है? तो बोरो कहता है उसने मुझसे मिलने का पैगाम भेजा है, आप हक बेजानिब थे, उसने अपनी गलती को दुरुस्त करने के अज़म के बारे में लिखा है। काजी फाजिल कुछ सोचते हुए कहते हैं अगर उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है तो वो यहाँ पेश होकर सर को झुका दे। बोरो कहता है वो शायद भाई से हिचकिचा रहा है। वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं बोरो ये कोई जान ना हो। बोरो कहता है गोगबोरो हमारी तरह है भाई, हम और वो एक हैं, शायद मेरी बातों ने आखिरकार उस पर असर किया है, उसकी अकल ठिकाने आ गई है। तो वज़ीर सलाउद्दीन कहते हैं चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो जाओ और उससे मिलो, लेकिन याद रखना एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ना, अगर उसकी हमसे नफरत अब भी बाकी है और हमारे मुतल्लिक अब भी उल फुल बकता है। बोरो कहता है अगर ऐसा हुआ तो उसकी ज़बान काटना मेरा फर्ज
है भाई, आप मुतमईन रहें, उस वक्त दोस्ती खत्म होगी और दुश्मनी शुरू होगी। ये कहते साथ ही बोरो चला जाता है। कुछ में लड़ गए मारिया और बाल्डोन के पास आता है और कहता है फांसी के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं जनाब। तो मारिया कहती है फांसी अवाम के सामने होगी, क्या ऐसा नहीं है? तो लड़ गए कहता है बिल्कुल। यह सुनकर बाल्डोन कहता है क्या उन्हें सबके सामने फांसी देना कुछ ज्यादा नहीं है? यानी आखिर वो मेरे बाबा के वफादार आदमी थे। मारिया कहती है लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने वैसी वफादारी आपके साथ नहीं निभाई। लड़ गए कहता है मल का हक बजानी में गद्दारी के लिए दी जाने वाली सजा सबको देखनी चाहिए, वरना आपकी हुक्मरानी ज्यादा देर नहीं चलेगी। मंसूबे के मुताबिक लड़ गए का कमांडर भागता भागता वहाँ पे आता है और कहता है कौंत बालेन और विलियम फरार हो गए हैं। यह सुनकर मारिया गुस्से से कहती है अहमक लोग, किसी काम के नहीं हो। अगर तुम 2 आदमियों को काबू नहीं कर सकते तो महल में तुम्हारा क्या काम है? लड़ गए कहता है पर सुनो जय मारिया, मैं इसका ख्याल रखूंगा। ये कहते साथ ही वो कमांडर के साथ चला जाता है। बाल्डोन बेचारा सोचता ही रह जाता है, यानी कि इतना बड़ा वाकया, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। शाम में राजा गुमिश तगिन से कहता है शाम से निकलने वाले सोने की एला के मुसलमानों तक ना पहुंचने की उमर मल्ला की जानिब से सलाउद्दीन को खबर पहुंचाने की बात वाज़ेह हो चुकी है। मेरे अमीर, आप अपनी पेशनगोई में दुरुस्त थे, अब आपका क्या हुक्म है? जवाब गुमिश तगिन कहता है मैंने जो करना है वो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं करातगिन वहाँ पे आता है। उसे देखकर गुमिश तगिन कहता है हमारे पास एक जरूरी मसला है जिसके साथ निपटना है। करातगिन कहता है ठीक है, मैं मुतजस्सिस हूँ कि ये क्या है। गुमिश तगिन खड़े होकर कहता है हम जब वहाँ पहुंचेंगे तो जान जाओगे। ये कहते साथ उन्हें लेकर आगे बढ़ता है। जंगल में बोरो अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है हम मुलाकात की जगह पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से गायब हो जाओ और मेरी पैरवी दूर से करो। अली कहता है आपको अकेले बुलाना कोई भलाई की अलामत नहीं है चचा। तो बोरो कहता है सच है, लेकिन मैं अपने भाई को सब कुछ नहीं बता सकता था, वरना वो मुझे इजाजत ना देते। तो रात कहता है चचा मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर बोरो आपको मारने की कोशिश करता है तो? यह सुनकर बोरो कहता है अगर मामला यहाँ तक पहुंचा तो मैं तलवार चलाने से गुरेज नहीं करूंगा, हम जो कुछ देखेंगे उसी के मुताबिक हरकत करेंगे। ये कहते साथ ही बोरो उनसे अलग हो जाता है। शाम में गुमिश तगिन करातगिन को लेकर सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के हाथों से बनाए हुए मिंबर के पास आता है। वहाँ पहुंचते हुए करातगिन कहता है क्या हम दरवेश चचा से मुलाकात करने आए हैं या तुम पर दुनिया तंग हो गई है और तुम दुआ मांगने आए हो? गुमिश तगिन कहता है नहीं, इसके बिल्कुल बरक्स, हम इस दुआ को सफाई हस्ती से मिटाने आए हैं। हम नूरुद्दीन जंगी के मिंबर को जमीन बोस कर देंगे। यह सुनकर करातगिन परेशान होते हुए कहता है क्यों? इस अजीम अमीर ने अपने सारे काम छोड़कर इस मिंबर पर कब्जा कर लिया है। गुमिश तगिन कहता है यह मिंबर बरसों से लोगों की नजरों में मतलूबा फतह की सबसे अहम इलामत था। अगर हम अमन को बरकरार रखना चाहते हैं तो इसे याददाश्त से मिटाना जरूरी है। करातगिन कहता है ठीक है, मुझे क्या चाहते हो? गुमिश तगिन कुल्हाड़ी उसे देते हुए कहता है यह बजाते खुद तुम करोगे। यह सुनते साथ ही करातगिन बहुत परेशान हो जाता है और कहता है क्यों? मैं क्यों? जाकर किसी लकड़ी वाले को ले आओ, वो आकर मिनटों में कर देगा। गुमिश तगिन कहता है मुझे तुम्हारी अपने साथ वफादारी देखनी है करातगिन, अब कोई दरमियानी सूरत नहीं है, या तो स्याह या सफेद। अगर तुम शाम में रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरा हुक्म मानना होगा। ये सुनते साथ ही करातगिन उस समय को याद करता है जब वजीर सलाउद्दीन ने उससे कहा था तुम्हें किसी भी सूरत गुमिश तगिन का एतमाद जीतना है। इस ख्याल के बाद करातगिन कुल्हाड़ी थाम लेता है और काफी देर तक मिंबर को देखने के बाद आखिरकार उस पर पहला वार कर देता है। साथ में खुद से कहता है ए अजीम हस्ती मुझे माफ कर दे। बदबख्त गुमिश तगिन ये मंजर देख रहा होता है। करातगिन एक के बाद एक वार करता ही चला जाता है। गुमिश तगिन खुश होते हुए कहता है खूब, मिंबर का यहाँ पे टुकड़ा भी नहीं बचेगा। ये कहते साथ ही गुमिश तगिन चला जाता है और करातगिन बहुत परेशान हो जाता है। कुछ देर सोचने के बाद गुस्से में कुल्हाड़ी फेंक देता है, फिर मिंबर के साथ ही बैठ जाता है। कायरा में काजी फाजिल वजीर सलाउद्दीन को परेशान देखकर पूछते हैं मेरे सुल्तान क्या आप बोरो के लिए परेशान हैं? तो वजीर सलाउद्दीन कहते हैं मुझे कुछ बुरा महसूस हो रहा है, मैं अपने सीने में घुटन महसूस कर रहा हूँ। बाहर से आवाज आती है मुझे अंदर जाने दो, मैंने सुल्तान सलाउद्दीन से बात करनी है। जाने दो जाने दो। खलील उसे लेकर अंदर दाखिल होता है तो वो बोरो की जानिब से भेजा हुआ सिपाही होता है। वो वजीर सलाउद्दीन की जानिब बढ़ते हुए बोरो बोरो पुकारता है। वजीर सलाउद्दीन परेशान होते हुए पूछते हैं क्या हुआ बोरो को, कहाँ है वो? सिपाही कहता है हम पे हमला किया गया, मेरे सरदार ने मुझे आपको इतला देने के लिए भेजा है। वजीर सलाउद्दीन कहते हैं हमलावर कौन थे, तुमने क्या देखा? सिपाही कहता है गोग बोरो और उसके आदमी, उन्होंने हमारे लिए एक जाल बिछाया। ये सुनते साथ ही वजीर सलाउद्दीन कहते हैं खलील तैयार हो जाओ। ये कहते साथ ही वजीर सलाउद्दीन आगे बढ़ जाते हैं। शाम में करातगिन बहुत परेशान मिंबर के पास बैठा होता है, इसलिए हमें उमर मल्ला उसके पास आते हैं और मिंबर टूटा हुआ देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर पूछते हैं यहाँ क्या हुआ? करातगिन उनके पाँव पड़ जाता है और कहता है माफ कर दें दरवेश चचा, माफ कर दें, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी सौंपी। ये सुनते साथ ही उमर मल्ला उस ख्वाब को याद करते हैं जब ख्वाब में करातगिन ने खून के साथ वजू करवाते हुए उन्हें यही अल्फाज कहे थे। इस ख्याल के बाद करातगिन कहता है उस काफिर गुमिश तगिन ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी, ये उस गद्दार का काम है। उमर मल्ला उसे सारा देकर खड़ा करते हैं और कहते हैं तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, तुम खुद को इल्जाम ना दो, तुमने वो किया जो जरूरी था, अब बारी मेरी है। फिर मिंबर को देखते हुए कहते हैं मेरा आखिरी फरीजा इस मिंबर को दोबारा तामीर करना होगा, वो जो भी करना चाहें कर लें। सुल्तान नूरुद्दीन और उनके वारिस सलाउद्दीन के देखे गए मुकद्दस ख्वाब की शर्मिंदा ताबीर होने में कोई रुकावट नहीं बन सकेगा। इसके साथ ही करातगिन चला जाता है। कायरा में आगे बढ़ते हुए काजी फाजिल सिपाही से कहते हैं इलाज का तैयार करो, तमाम हकीमों को चौकन्ना रहने का कहो, बड़ी तादाद में जख्मी आ सकते हैं। सिपाही चला जाता है और काजी फाजिल परेशान होते हुए कहते हैं एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है, तो खैर फरमा मेरे रब। इसलिए मैं ताजिर वहाँ पे आकर कहता है जमशेद अफंदी। दूसरी तरफ से जमरद भी वहाँ से गुजरती है। काजी फाजिल पूछते हैं क्या हुआ जमशेद को? तो ताजिर कहता है जमशेद को मार दिया गया है, उसके पेट में खंजर गोंपा गया है। काजी फाजिल परेशान होते हुए पूछते हैं किसने किया ये? तो ताजिर कहता है मैं नहीं जानता। जमरद एकदम से चली जाती है। उधर बहुत देर के इंतजार के बाद बोरो के साथी उसके पास वापस आ जाते हैं। तो राब कहता है चाचा इस मामले में कुछ तो गलत है। अली कहता है हम कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं, ना कोई आया ना कोई गया। बोरो कहता है थोड़ी देर मजीद इंतजार करते हैं, जो भी होगा वाज़ेह हो जाएगा। इसलिए मैं सायरा वहाँ पे आती है। बोरो से पूछता है एला में जो कुछ किया उसके बाद किस मुंह से मेरा सामना कर रही हो? जवाब में सायरा कहती है तुम्हारे भाई की जान खतरे में है, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ। बोरो पूछता है कैसा खतरा, तुम इस बार भी किस खेल के चक्कर में हो? यह सुनकर सायरा कहती है बोरो सलाउद्दीन के लिए जाल बिछाएगा, अगर तुम जल्दी करते हो तो शायद वक्त पे पहुंच सकते हो। बोरो कहता है तुम सच कह रही हो, मैं कैसे जान सकता हूँ? सायरा कहती है क्या तुम यहाँ बोरो का इंतजार नहीं कर रहे? क्या वो आया नहीं आया ना? यकीन करो या ना करो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। बोरो पूछता है इस एहसान की वजह क्या है? जवाब में सायरा कहती है मैंने कोई एहसान नहीं किया, जाओ और खुद ही देखो कि ये कैसा दर्द होता है कि तुम्हारे किसी प्यारे को तुम्हारे सामने मार दिया जाए। यह सुनते सारी बोरो और
उसके साथी एकदम से घोड़े दौड़ा देते हैं। शाम में उमर मल्ला मिंबर की मरम्मत कर रहे होते हैं। इसी लम्हे नन्हा बच्चा अब्दुल्ला उनके लिए खाना लेकर आता है। उमर मल्ला उसे देखकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं और फिर उसकी मदद से वजू करने लग जाते हैं। कायरा में शमसा खवातीन के पास आती है और उन्हें नज़म के बारे में दर्स देती है। शमसा हिचकिचाते हुए कुछ गाने लगती है मगर नहीं गा पाती और एक दो अल्फाज कहते साथ ही खांसने शुरू कर देती है। ये देखकर लैला परेशान होते हुए कहती है, शमसा आपा हकीम को बुलाओ जल्दी। सब खवातीन भागती हुई उसके पास जमा हो जाती है। शमसा मुसलसल खांस रही होती है जबकि ज़मरद उसे देखकर हंसती है। इधर हम देखते हैं कि वज़ीर सलाहुद्दीन आगे बढ़ रहे होते हैं। वो अपने साथियों समेत एक जगह रुकते हैं और घोड़ों से उतर जाते हैं। जगह देखते हुए एसिस कहते हैं, लड़ाई की तो कोई इलामत नहीं है मेरे सुल्तान। इसलिए में गुकबरो और उनके सिपाही इधर उधर से निकलते हैं और उन सबको घेर लेते हैं। गुकबरो की तलवार वज़ीर सलाहुद्दीन की गर्दन पे होती है। ये देखकर वज़ीर सलाहुद्दीन के साथी बहुत परेशान हो जाते हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन गुकबरो से कहते हैं, तो तुमने ये भी कर दिया गुकबरो, ये हसद और लालच किस लिए है? अपने दीनी भाई के साथ ऐसा करना तुम्हें ज़ेब देता है क्या? तो गुकबरो कहता है, जब मुझे धोखा देकर वो सोना जो मुसलमानों का हक था गसब किया, तब क्या तुमने अपने भाइयों का सोचा? वज़ीर सलाहुद्दीन से कहते हैं, तुम ऐसी संगीन गलती कर रही हो कि मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वो तुम्हारी आंखें खोल दे। गुकबरो कहता है, मैंने जो देखना था देख लिया सलाहुद्दीन, अब जो कुछ मैंने देखा है उसका फैसला सुनाऊंगा। ये कहते साथ वो तलवार उनकी गर्दन के नीचे रख लेता है। वज़ीर सलाहुद्दीन के साथ ही तड़प उठते हैं और कहते हैं, ना करो हरगिज़ ऐसा ना करो। इधर मिंबर के पास उमर मल्ला नमाज अदा कर रहे होते हैं कि इसी लम्हे गद्दार गुमश्तगिन वहां दाखिल होता है और खंजर हाथ में पकड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता है। उमर मल्ला सजदे में जाते हैं और गुमश्तगिन खंजर उनके पेट में गाड़ देता है। उमर मल्ला जमीन पर गिर जाते हैं। गद्दार बदबख्त जालिम गुमश्तगिन अपना चेहरा आया करता है और कहता है, तुम हार गए बूढ़े। तमाम जंगी सरजमीनें, तमाम इस्लामी सरजमीनें ईसाइयों की होंगी। मैं नूरुद्दीन जंगी की तमाम बाकियात को एक एक करके खत्म कर दूंगा, पहले तुम फिर सलाहुद्दीन। उमर मल्ला आखिरी सांसें लेते हुए कहते हैं, तुम असल में तुम हार गए। मुनकिर और मुनाफिक जमीन बॉस हो जाएंगे। फतह ईमान वालों की है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कलमा मुकम्मल करते साथ ही उमर मल्ला की सांसें थम जाती हैं और यहूदी काफिर बदबख्त वहां से चला जाता है। उधर बोरो गुकबरो तक जा पहुंचता है और ये मंजर देखकर कहता है, रुको गुकबरो रुको, अपनी तलवारें नीचे करो। ये कहते साथ ही वो घोड़े से उतरता है और तलवार बेनियाम कर लेता है। मजीद कहता है, मेरे भाई को छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो गुकबरो कहता है, तुम मुझे करतबा में मेरी पीठ में गोंपे गए खंजर के साथ पहले ही मार चुके हो, अब बारी मेरी है। जो भी हमला करे उसे मार गिराओ, चाहे जो कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं मरता हूँ तो ना रुकें, किसी को जिंदा ना रहने दें। वज़ीर सलाहुद्दीन बोरो से कहते हैं, बोरो सब कुछ तुम्हारे सुपुर्द है, हमारा रास्ता, हमारा मकसद और हमारी दुआ वाज़े है। यह सुनकर बोरो कहता है, गुकबरो छोड़ो छोड़ो, मगर तलवार चल जाती है। खून टपकना शुरू हो जाता है। बोरो और वज़ीर सलाहुद्दीन के साथियों की नजरें वहीं पर रुक जाती हैं। खून जमीन पर गिरता ही चला जाता है।